Good morning, everybody. I'm Dr. Mukesh Parik, and I'm live with this new revision session. Today, we'll be studying many modern writers, modern novels. We'll study so many different things regarding the aspects like Roman Clef, like about the magazine, the dial. We also read about the theory of the iceberg theory, and we'll also read a very famous poem which is about to come in the exam by W.B. Yeats also. So kindly show your presence. Good morning, good morning, good morning. Kindly show your presence so that we can start the class, and kindly share the video. And I hope you all are watching these videos when I upload them on my YouTube channel also, because if you are really sincerely preparing for your exam, and if you see that maximum number of classes have already been uploaded over there, if you revise, if you are really seriously revising them, then you will find that more than 80% questions will be there in the exam from these classes. I'm going to lock these videos on my YouTube channel after the exam. So till then, you all can take benefit, of these classes. Kindly show your presence. Good morning, Kundan. Good morning, Pushpita. Mr. Malik, good morning. Kindly show your presence. Share the video, and I request you all to kindly write comments on the YouTube also. When you watch this video again there, you should write certain comments over there so that the other students can also know about the videos and all. I can see some of you. Kundan, good morning. Balure, Bablu. Okay. So start writing. Are you ready with your notebooks and pens? Okay, start writing. In the last few classes, we had a great discussion. I cannot say great because anything which is not given more than 10 lectures cannot become great. But because of the paucity of time, oh, that's great. Kundan is saying that he appeared in the set exam, and most of the questions, he says all the questions were from the previous discussed topics. Thank you very much. Then I think you should write this on Facebook. देखिए, आप लोगों की जिम्मेदारी है और आप लोगों की जिम्मेदारी आपको ही तय करनी है कि क्या कारण है कि मैं 20 सालों से इस फील्ड में पढ़ा रहा हूं, एंड आई नेवर केम लाइव because I did not have time. Divya Somesh Bhatti. There are many students, who are my offline students. They are right now watching us. They all know that I was very busy throughout the day. उनको मालूम है मैं सुबह से लेके शाम तक अपनी classes में busy रहता हूँ. I never got the time to come live like this. So this lockdown period is very good for all the students community, I think, and for me also, because और मुझे बहुत सारी बातें करने का मन करा, लेकिन क्योंकि पढ़ाई करनी है, सिर्फ एग्जाम है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा. लेकिन पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को, सभी फेसबुक फ्रेंड्स ने जिन्होंने मुझे इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया बर्थडे के ऊपर. मेरी ज़िंदगी में पहली बार इतनी सारी विशेज़ मुझे मिली, और ये शायद जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दैट I took the right benefit of this medium. वरना आपको सबको मालूम है कि हम लोग फेसबुक का क्या इस्तेमाल करते थे. ठीक है, नहीं, यस्टरडे क्लास हुई नहीं थी, डोंट वरी, बिकॉज यस्टरडे आई टोल्ड यू. इसका मतलब है तुम लोग रेगुलर क्लासेस नहीं देखते हो. मैंने कल परसों की क्लास में बताया था कि मैं डे बिफोर यस्टरडे आई टोल्ड दैट आई वोंट बी एबल टू कम लाइव बिकॉज आई एम गोइंग विद माई डॉटर फॉर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. उनके 2 एंट्रेंस एग्जाम थे कल, तो थ्रू आउट द डे आई वॉज बिजी विद हर. लेकिन कल का दिन मेरे लिए भी बहुत फ्रूटफुल रहा कि माई डॉटर वॉज देयर इन द एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड आई वॉज देयर आउटसाइड इन द कार. आई रेड अ लॉट. हालांकि मेरे क्योंकि जो इंटरनेट है, वाईफाई वो घर पे है, तो मेरे फ़ोन में वाईफाई नहीं था, अदरवाइज मैं वहाँ बैठे बैठे भी क्लास ले लेता. बट आई रेड अ लॉट. आई रेड सो मेनी डिफरेंट एसेज विच वर इनकम्प्लीट. और मैं अपनी बहुत सारी बुक्स लेके गया था कार के अंदर, और मैंने मेरे ख्याल से 5-6 घंटे कार में गुजारे कल, एंड आई कॉन्स्टेंटली रेड. मेरा सिर दर्द हो गया कल पढ़ते पढ़ते, बिकॉज आई वॉन्टेड टू यूटिलाइज दैट टाइम.
अच्छा, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि आपको कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है? इसलिए नहीं बताया कि मैं इतना महान हूं कि मैं पढ़ता हूं. सो विद दिस नोट आई थिंक वी शुड मूव. एंड कुंदन, आपको एक बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स लिखना चाहिए फेसबुक के ऊपर कि किस तरह से हम लोग बाकी स्टूडेंट्स को बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी बेचारे जानते नहीं हैं कि हम लोग लाइव क्लासेस ले रहे हैं और किस तरह से हम लोग फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस होल स्टूडेंट कम्युनिटी आई एम कमिंग लाइव. आप इसको सेल्फिश भी बोल सकते हो. आई एम कमिंग लाइव फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. आई डोंट प्रिटेंड दैट आई एम अ वेरी चैरिटेबल पर्सन. इट्स नॉट लाइक दैट. आई एम philanthropist, but somewhere I want to also make people know that there is somebody who has dedicated 20 years in this field, and you people can take benefit out of that. Clear? So it's not always like with the double faces and mask I say that I'm very charitable. It's not. I think for my benefit I'm coming live. Clear? Chale, with your copy and with your notebooks and with your pen, if you're ready, then start writing. आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर के बारे में बताता हूँ. एक बुक आपको एग्जाम में पूछी जाएगी. लिखिए, रॉबर्ट ग्रेव्स का नाम सबने सुन रखा है. लिखिए रॉबर्ट ग्रेव्स. लिखते जाइए रॉबर्ट ग्रेव्स. अभी मेरी तारीफ बंद कर दीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि हर आदमी के कुछ अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं कुछ भी करने के पीछे. चलिए, रॉबर्ट ग्रेव्स, उनकी एक फिक्शनलाइज्ड ऑटोबायोग्राफी है विच इज वेरी फेमस राइट नाउ. रॉबर्ट ग्रेव, विच वॉज अ मॉडर्न राइटर, his autobiography, which is fictionalized and which is quite colorful, and there are so many different things which he added. But then as per the autobiographies are concerned, this particular book is very famous. Okay, Goodbye to All That. This is the name of his autobiography. Goodbye to All That. जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, and if they want to buy from me the study material or they want to take admission for the new session, क्योंकि ऑनलाइन जो 2000 दिसंबर का एग्जाम होगा उसके लिए एडमिशन होना स्टार्ट हो गए हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया से एडमिशन हो रहे हैं. स्टूडेंट हमें जानने लगे हैं एंड दे हैव फेथ बिकॉज आई एम कमिंग लाइव एंड आई एम टीचिंग, एंड दिस इज द सेम लेवल आई मेंटेन इन माय ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो. सो अगर आपको एडमिशन लेना है, आप अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए, आप भी आ जाइए, और जितनी जल्दी आप एडमिशन लेंगे उतनी जल्दी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और हो सकता है आपको इस वाले एग्जाम में भी उससे बेनिफिट हो जाए. ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम भी थोड़ा लेट होगा. अब थोड़ा लेट इन द सेंस के CSIR की डेट आई है, तो हो सकता है 15-20 दिन 25 दिन और लग जाएं. सो वो इतना टाइम तो हम लोग बहुत बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं. Okay, so with this information, I told you about Robert Graves' fictionalized autobiography, which is very colorful, very famous, and that is Goodbye to All That, published in 1929. Okay, हालांकि इसका रिवीजन भी आया था, एक रिवाइज्ड एडिशन भी आया था 1957 में. ठीक है, so अगर आप नहीं लिख पाते हैं, if you just are watching me with this unique hairstyle today, then you can watch this as a video on my YouTube channel. My YouTube channel's name is Mukesh Parikh Cosmos. I immediately upload certain videos after the class on my YouTube. अच्छा, उसके बाद आप लिखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है डेविड जोन्स. डेविड जोन्स की बुक का नाम एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, एनाथेमेटा. बुक का नाम लिखो, एनाथेमेटा, ANATHEMATA, ANATHEMATA. एनाथेमेटा जो है वो 1952 में पब्लिश हुई थी, और दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक. ये एग्जाम में आपको दिखेगी जरूर. ठीक है, ये मैं केवल बुक्स के नाम ले रहा हूं बिकॉज आपको पता है हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 2 या 3 क्वेश्चंस मैचिंग वाले भी होते हैं. ठीक है, सो बाय कंसीडरिंग दैट और कीपिंग दैट इन माइंड, दैट यू विल समटाइम्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू सी द क्वेश्चंस, यू समटाइम्स फील दैट कि क्वेश्चन आया कहां से है ना. शत्रुपा, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज आई वाज सफरिंग फ्रॉम अ हेडेक, सो आई ऑयल्ड माई हेयर and then I didn't shampoo it. So वो जब नहा के बाहर आया तो वो बाल चिपक गए, तो ना I have to have this style now. Okay, write down another unheard name, that is John Cooper Powys. ये आपने नाम नहीं सुना होगा पहले. John, JOHN तो पता ही है, Cooper, COWPER, John Cooper Powys, POWYS. आपने जॉन कूपर पॉविस का नाम इसलिए नहीं सुना बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट गो डीपली थ्रू द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ओके, चलिए अब लिखिए, इनका एक बहुत ही अजीब सा इडियोसिंक्रेटिक नॉवल है in which he has given us the references of different countries like China. Okay, and there is a particular protagonist, and उसका नाम लिखो, उसका नाम पूछ सकते हैं प्रोटैगनिस्ट का.
नॉवल का नाम लिखो पहले तो, अ ग्लैस्टनबरी रोमांस। शत्रुपा। चलो आप कमेंट करना बंद करो, लिखना शुरू करो, नहीं तो मुझे हंसी आती रहेगी। जॉन कूपर पॉविस का एक बहुत बड़ा वास्ट इडियोसिंक्रेटिक नॉवल है, उसका नाम है अ ग्लैस्टनबरी रोमांस, बहुत फेमस है। अर्लियर इट केम एज एन ऑप्शन इन द एग्जाम। ओके, अ ग्लैस्टनबरी, GLASTONBURY, ग्लैस्टनबरी रोमांस। इट वाज पब्लिश्ड इन 1932, and there is a concept of Arthurian legends in it. There comes the concept of Holy Grail, ठीक है। इसमें ये आर्थुरियन रोमांस के नाम से लिख लीजिए आप, इसके नीचे यू जस्ट राइट काइंड ऑफ footnote that it is about the Arthurian legends. Okay, so मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, I have talked about 3 books so far. Robert Graves की fictionalized autobiography, which is very famous, Goodbye to All That, published in 1929, and 1952 it was revised. Clear? And David Jones' Anathemata, which is again it was published in 1952, and again a very famous book. And then John Cooper Powys, वास्ट एंड इडियोसिंक्रेटिक का मतलब क्या होता है, अपने खुद के स्टाइल में मॉडर्निस्ट फिक्शन, क्योंकि ये मॉडर्निस्ट फिक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें इन्होंने होली ग्रेल का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है, जिसमें एक बहुत पुराना चर्च दिखाया है, और उसके मतलब एक चर्च से रिलेटेड बड़ा होली सी कहानी है। हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम नॉवेल्स नहीं पढ़ते हैं। पहले तो अपनी अपनी कंडीशन को समझिए कि how this kind of preparation is called second hand preparation, because are we really aware when somebody publishes a novel, and what is the merit of that particular novel, whether throughout the world wherever it is published, do we have a collection of novels, do we even have collection of the novels written in our own languages, for example in Gujarati, in Kannada, in Malayalam, in Bengali, in Assamese. You will be surprised, they have started asking us these kind of questions. So once you become a professor in the coming time, you should be aware about the many things which is around you, and the intellectual people, particularly the silent writers who are writing. And day by day, the nature of this exam will be towards, they would divert our attention towards, because post-colonial period is going on, and in post-colonial and post-modern period, we talk about the peripheral people. तो आपने नोटिस किया होगा दलित राइटिंग्स के बारे में हमें पता नहीं होता है ना। जैसे कल आपको याद है, सभी स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने भी मुझे बर्थडे विश किया था, तो मैंने उनको रिटर्न गिफ्ट के तौर पर एक सत्यजीत रे का एक बहुत सुंदर सा एक फिल्म बनाई थी उन्होंने, छोटी सी। सत्यजीत रे की तो बहुत सारी फिल्में फेमस है, पता है ना आपको, और उनको पढ़ाया भी जाता है, उनकी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ाई जाती हैं। ही हैज बीन फेमस फॉर क्रिएटिंग सर्टेन कैरेक्टर्स आल्सो, ओके, एंड ही वाज द फर्स्ट वन हु वॉन द ऑस्कर अवार्ड इन इंडिया। I was very much in 12th standard, I think, when he was awarded that prize. उनको हॉस्पिटल में जब वो मेरे ख्याल से he was bed ridden on death bed, तब उनको वहाँ से लोग आकर के अवार्ड दिया था। उसको बोलते हैं या टू, मैंने उसको आपको इसलिए दिया था कि मेरे बच्चे समझेंगे कि भाई लिटरेरी चीजें किसे कहते हैं। ओके, लिटरेरी चीजें देखनी चाहिए हमें। शतरंज के खिलाड़ी हो गई, सोनार किला हो गया, पाथेर पांचाली देखिए आप, क्या नाम मानकर, जब भी आप थोड़ा सा बोर हो जाएं। मैंने कल अपनी बिटिया को, छोटी वाली बिटिया को, वो कुछ देख रही थी यूट्यूब पे कुछ भी, तो मैंने ना उसका आई जस्ट डाइवर्टेड हर अटेंशन, और मैंने उसको फिर वो सत्यजीत रे की 2 फिल्म दिखाई, विच इज कॉल्ड अ फिल्म फेबल। हमेशा याद रखिएगा, मैं बीच बीच में कहे बिना नहीं रह सकता, आई एम सो सॉरी। हमारे चारों तरफ ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट लोगों की भीड़ है, ओके, एंड हम एक ऐसी जनरेशन में जी रहे हैं जिसमें हम बहुत कम डीपर लेवल पे अपने आप को फिलोसॉफिकल बनाने का काम करते हैं, क्योंकि अगर हम वी डोंट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ लिटरेचर, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रिलीजियस राइटिंग्स, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ हिस्ट्री, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइकोलॉजी, तो जब आप प्रोफेसर बनोगे, मैं तो यही हमेशा कह के चलता हूं कि आप प्रोफेसर हो, ओके, आप पहले अपने आप को प्रोफेसर महसूस करो। मैं कहां अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना, लेकिन जिस दिन में मैं प्रोफेसर लग जाऊंगा और आपको अचानक से खबर मिलेगी, तो जो मुझे चुनेंगे वो मेरा इंटरव्यू लेंगे ऑब्वियसली। और अगर नेपोटिज्म नहीं हुआ वहां पे कोई करप्शन नहीं हुआ,
So they will check, my intellect level, and they will say, they will feel that, okay, we are going to hire an asset, as an intellectual asset बोला जाता है प्रोफेसर्स को. ओके, तो आप इंटेलेक्चुअल एसेट कितना है ये देखिए. आपको अपने आसपास की जितनी भी लिटरेरी एक्टिविटीज होती है. तो कल मैंने ये फिल्म, जो 2 फिल्म मैंने आपको कल दी थी, वो मैंने अपनी बेटी को भी दिखाई. हालांकि उसको फिर मैंने ये कहा कि शी इज ओनली इन 3rd स्टैंडर्ड. मैंने उसको ये कहा कि आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, वट एवर यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ दिस. फिर वो उसको दोबारा देखेगी, एंड देन वी वॉच्ड, बोथ ऑफ अस वॉच्ड, क्या नाम है उसका, चरणदास चोर. ये चरणदास चोर आप लिख लीजिए, इस पे आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे ना जब एग्जाम में, तब आपको मेरी याद आएगी. चरणदास चोर श्याम बेनेगल की मूवी है, और ये विजयदान देथा की स्टोरी पर बेस्ड है. पहले आई थी ना शाहरुख खान की, दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन विजयदान देथा. सो विजयदान देथा इज कंसिडर्ड द लोकल शेक्सपियर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज. ओके, और वो बहुत बड़े राइटर, आज उनको दुनिया मानने लगी है. सो वी शुड बी अवेयर अबाउट आवर सराउंडिंग्स. एंड तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम आपको पढ़ाने बैठते हैं, देन वी इफ वी आर टीचिंग यू ओल्ड लिटरेचर, then it is okay, that because even I was not born by that time when the book was published. But when the books are published now, like एक question आया था अमेरिकाना पे पिछले से पिछले नेट में, and the students were just looking around like, from where the question has come. Come on, Americana is a famous novel, okay, which is based on the theme of apartheid. तो आप हरियाणा के हैं, तो आप हरियाणा के आसपास देखिए कौन से राइटर्स ट्रांसलेट कर रहे हैं. ओके, कौन से राइटर्स ट्रांसलेशन में बिजी हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शुक्ल की राग दरबारी पढ़ी है. अब राग दरबारी पे अगर क्वेश्चन आ गया कि हु डिड द फर्स्ट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, प्रेमचंद पे आ गया है ना. मान लीजिए क्विल्ट पे आ गया, जो लिहाफ है, इस्मत चुगताई की कहानी. तो ये तो चलो, आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट थिंग्स. चलिए बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं इस वक्त क्लास में, दोज हु नो अबाउट कृष्णा सोबती. चलिए मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट कृष्णा सोबती. बहुत कम लोग मुझे देख रहे हैं आज, पता नहीं क्यों, उनको लग रहा है बोरिंग लेक्चर हो रहा है. जो लोग एसोसिएटेड हैं वो प्लीज देखिए और मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट कृष्णा सोबती, या हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दैट विच वुमन राइटर इन इंडिया वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड. बताइए. तो अगर हमें ये सारी बातें मालूम नहीं है, कृष्णा सोबती का नाम लिख लीजिए. उनका बहुत फेमस हिंदी राइटर है वो मित्रो मरजानी. अब ये नॉलेज नहीं है. अच्छा, ये जो बच्चे पेड हैं, जिन्होंने एडमिशन लेकर के स्टडी मटेरियल ले लिया है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का पीडीएफ आज निकाल के आप पढ़ेंगे, तो यू विल फाइंड दैट आई हैव गिवन ऑल दीज डिटेल्स ओवर देयर. Okay, that's why I say that my study material is world class in the sense that I put a lot much labor in collecting these works. उनका कंपाइलेशन करते वक्त मुझे बहुत मेरा पूरा एक्सपीरियंस उसमें झोंक दिया मैंने. सो दे आर गोइंग टू. अच्छा, ये जब आपको क्वेश्चंस पूछते हैं ना एग्जाम में, तो तब आपको अजीब लगता है कि ये कोई बुक मार्केट में क्यों नहीं है. मार्केट इज अ डिफरेंट थिंग. मार्केट में जो दूध मिलता है, क्या वो ओरिजिनल दूध जैसा होता है क्या, ये बताइए मुझे. नहीं होता है ना. घर की बनाई मिठाई में और बाजार की मिठाई में अंतर है ना. सो यू जस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो मैं पढ़ाता हूं, ये आपका घर का मामला है. ये इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि कुछ चीजों को एडिट कर दो एंड ऑल. ओके, सो बी अवेयर एंड प्लस बी वेरी सीरियस. You are going to be philosophers in the classrooms. Okay, living philosophers can only mold the nation. Okay, and one more thing you should remember always. पता है किसने कही है? न्यूटन ने कही है. Genius is patience. लिखिए, genius is patience. लिखिए. अब you will be surprised that how can genius be patient? A patient person. Patient means is quite. What we say, a person, with a lot much hard worker. A genius is, all of a sudden, without hard work becomes a genius. No, it's not. Newton said that genius is patience and patience is virtue. तो जितने भी बच्चे मुझे देखते हैं, कई बार अगर वो ये सोच रहे हो कि मैं कोई न्यू कमर हूं जिसने चीजों को क्रैम अप कर लिया है, एंड आई क्लेम. और एक बात का और ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट जो लोग होते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा धब्बा है समाज के ऊपर, क्योंकि कॉन्फिडेंस को अच्छा नहीं माना जाता है. कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि यू प्रिटेंड दैट यू नो एवरीथिंग. जबकि आप कभी भी देखिएगा, जब मैं क्लास लेने आता हूं तो मैं अपने मंदिर में जाकर भगवान को पहले हाथ जोड़ता हूं कि भगवान अच्छी क्लास करवा देना.
बिकॉज आई ऑलवेज फील दैट कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी मुझसे. ओके, एंड इफ यू रिमेंबर दैट, अभी मुझे बहुत सारा बोलने का मन इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें थोड़ा मोटिवेट करूं, दैट यू नो एटलीस्ट समटाइम्स यू हैव द मटीरियल. लेकिन मैं देखता हूं कि जब भी मैं देखता हूं फेसबुक पे ग्रीन बत्तियां जल रही होती हैं, इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन. व्हाट आर यू डूइंग देयर? कम ऑन, आप स्टडी मटेरियल को पढ़ना शुरू करो ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए. ओके, चलिए. Krishna Sopti, I attended a live session, and it means you are a regular student, and you know attend the classes very very sincerely. You are going to be a professor. आज लिख लेना कॉपी में. चलिए, जॉन कूपर पॉविस का नाम मैंने ले लिया. आई एम सो सॉरी, आई डाइग्रेस्ड. लेकिन देखिए, मोटिवेशन जो होता है ना वो ऑर्गेनिक होना चाहिए. ऑर्गेनिक मोटिवेशन किसे कहते हैं और सिंथेटिक मोटिवेशन किसे कहते हैं? सिंथेटिक मोटिवेशन क्या होता है? आप कहीं गए, आपको बहुत सारा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करो, आप ना 2-3 दिन तक मोटिवेटेड रहोगे, एंड देन आपका जो ओरिजिनल नेचर है आप उसमें चले जाओगे वापस. उसको बोलते हैं सिंथेटिक मोटिवेशन. ऑर्गेनिक मोटिवेशन क्या होता है? जिसमें जनरेट होता है मोटिवेशन अंदर से, दैट यू आर सप्लाइड विद द मटेरियल, योर टीचर इज ऑलवेज विद यू, यू नो, एंड you don't feel that teacher is an ideal. You start feeling that the teacher is a friend with you, a member of your family, and then you start taking inspiration day to day basis, and then you incorporate those qualities in you, and then ultimately you also become great. और great कोई होता ही नहीं है. The more we are useful, the more we are great. Okay, so how much useful you are going to be for the coming. आप लोग इसलिए एग्जाम की तैयारी मत करो कि हमारी नौकरियां लग जाएगी. आप इसलिए पढ़ाई करो, इसलिए मेरे सेशंस देखो कि क्या हम ये जान करके कैन वी शेयर, कैन वी अंडरस्टैंड, कैन वी ऑर्गेनिकली इनकॉर्पोरेट आवरसेल्व्स, यू नो, विद द रिटन रियलिटी द राइटर हैज क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ अस. ओके, तो ये जो ग्रेट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ग्रेट कोई नहीं होता है. जितना ज्यादा आप यूजफुल हो दुनिया के लिए, उतना ही आप ग्रेट हो. ठीक है, तो अपने लिए सोच रहे हो तो फिर ग्रेट नहीं हो सकते आप. ठीक है, चलिए अब चौथे राइटर पे आते हैं. आई एम सॉरी, अब मैं फटाफट पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी आपको मोटिवेट नहीं करूंगा. मोटिवेट होना है तो पढ़ाई करते रहो. स्टीफन स्पेंडर, नाम तो सुना ही होगा आपने. इन माय लास्ट क्लास आई टॉक्ड अबाउट स्टीफन स्पेंडर. ओके, he describes his boyhood and adolescence in his autobiography World Within World. लिख लीजिए, World Within World, that is 1951. लिख लो. स्टीफन स्पेंडर का नाम सुना है क्या? जो ऑर्डन सर्कल में थे ना, स्टीफन स्पेंडर. एक इनकी बहुत फेमस पोएम है एंजिन. एक मैंने पोएम पढ़ाई थी आपको बहुत दिन पहले, बहुत दिन हो गए उस क्लास को, जिसमें रेबल, पोएम का नाम है रेबल. लिख लो, बहुत फेमस पोएम है. पढ़ना चाहोगे मैं दोबारा पढ़ा दूंगा. स्टीफन स्पेंडर इज अ वेरी 13 ways of looking at a blackbird. I don't remember, I think this was written by him or not, but engine I remember. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. एक आपने विलियम जरहार्डी का नाम सुना है? अरे, विलियम जरहार्डी का नाम सुना है क्या? GERHARDIE, जरहार्डी. 1895 से 1977 इनकी एज है, और इनका 3 नॉवेल्स के नाम बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में दिखेंगे जरूर. एक तो है फ्यूटिलिटी. लिखो, फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी, जैसे भी द वे यू प्रोनाउंस इट. इसका सबटाइटल है अ नॉवल ऑफ रशियन थीम्स, पब्लिश्ड इन 1922. So this was also it published in that era when modernistic novels were published. So futility has those themes of modernity. Then the second novel is again very very famous, that is The Polyglots. The Polyglots. Do you know the meaning of polyglots? The person who can use many languages. Clear? It was published in 1925. The Polyglots. And the third one is, ये जो थर्ड वन मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. आप ऐसा करो, द पॉलीग्लॉट्स के प्रोटैगोनिस्ट का नाम लिखो. राइट डाउन. यस यस लिख के बताओ. यू आर राइटिंग, यू आर रियली सीरियसली अटेंडिंग द क्लास, बिकॉज दिस क्लास इज ऑन फेसबुक. तो ज्यादातर लोग तो विल कम एंड सी लाइक हु इज दिस फेलो, व्हाट इज ही डूइंग. ओके, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन माय फ्रेंड लिस्ट आर स्टूडेंट्स ओनली. और आज धीरे धीरे मैं जो स्टूडेंट्स मेरे रियल स्टूडेंट्स हैं, क्लास में एडमिशन लिया है, उनको रखूंगा, बाकियों को मैं अनफ्रेंड करता जा रहा हूं धीरे धीरे, डे टू डे. बहुत सारे 5000 फ्रेंड्स होते हैं, आपको पता है ना, उनमें से अनफ्रेंड करने में कितना टाइम लगता है. सो आई एम अनफ्रेंडिंग दोज हु आर नॉट माय स्टूडेंट्स, ताकि केवल स्टूडेंट्स का ही ग्रुप रहे अपने फेसबुक पे. इतना टाइम ही नहीं मिलता, मुझे पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है. विलियम जरहार्डी का फ्यूटिलिटी, जिसका सबटाइटल मैंने बताया,
a novel of Russian themes 1922, and The Polyglots. Polyglots 1925 में पब्लिश हुआ. इसके हीरो का नाम बोलूं क्या? लिखो, जॉर्जेस, Georges, जॉर्जेस हैमलेट. पूरा नाम है 4 वर्ड्स का, जॉर्जेस हैमलेट एलेक्जेंडर डायाबोलॉव. जॉर्जेस हैमलेट एलेक्जेंडर डायाबोलॉव, DIABOLOUGH, डायाबोलॉव. ठीक है. सो जॉर्जेस हैमलेट एलेक्जेंडर डायाबोलॉव, ये इनके पॉलीग्लॉट्स का प्रोटैगनिस्ट का नाम है. ठीक है. चलिए अब आ जाइए. इफ आई आस्क यू दैट, if you remember few days back I asked about that novel, mangoes are not the only fruit. क्या था वो? oranges are not the only fruit. तो that was a lesbian fiction. But then another important novel which uses the modernistic techniques and all is Nightwood. लिखिए, ये क्वेश्चन भी आपको जरूर पूछा जाएगा. Nightwood, NIGHTWOOD. Nightwood is published in 1936. ओके. एंड इनकी जो राइटर है उनका नाम लिखो, जूना बार्नर. डी नाम थोड़ा टिपिकल है, DJUNA. राइट डाउन, DJUNA, जूना बार्नर, BARNER. Now, why this novel is famous? Why they will ask you this novel? Because this is considered to be a very long plot, and it is considered to be the first novel of lesbian theme. Right on. First novel of lesbian theme. And this is also Roman a clef also. Not exactly we say queer. Queer is a different word. Okay. Queer is a different word. Lesbian is a different word. Transsexual is a different word. Gay is a different word. Okay. Eunuch is a different word. Bisexual is a different word. So we should pay attention to all these words also, because we are students of literature, and literature starts with words. Clear? So Sunil, Nishad, I think you will pay attention to what I'm saying. Write down Roman a clef. कितने बच्चे क्लास में जिनको रोमन अ क्लेफ का मतलब पता है? ये पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है. एक खास किस्म का नॉवल होता है. इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ नॉवल in which the fictionalized characters, the imaginary characters, are based on, very clearly you can recognize in those characters the historical figure either or the contemporary certain people. Clear? So Roman a clef, this is the term used for a novel in which इसका मतलब होता है novel with the key. Roman a clef का मतलब होता है novel with the key. It means जैसे एनिमल फार्म नॉवल है, सो उसमें जो भी नेपोलियन है या जितने भी कैरेक्टर्स राइटर ने क्रिएट किए हैं, दे वर एसोसिएटेड विद द रशियन रेवोल्यूशन, एंड समवेयर वी कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई कि ये राइटर किसकी बात कर रहा है. ओके. सो दिस नाइटवुड इज अ रोमन अ क्लेफ ऑल्सो, विच इज बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स द राइटर हैज क्रिएटेड. They somehow were very famous, in that age as, for their lesbian, or say for their homosexual activities and all. And that was an age when it was not considered good. Clear? अच्छा, वैसे एक नाम और लिखिए जो आपको पूछा जाएगा. कहते हैं नाइटवुड जो है वो सेकंड कैटेगरी में आता है. फर्स्ट नॉवल है द वेल ऑफ लोनलीनेस. एक और नॉवल लिखो, वो रेडक्लिफ हॉल का लिखा हुआ है. राइट डाउन, लिखते जाओ, द वेल ऑफ लोनलीनेस. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1928, और वो जो नाइटवुड था वो 1938 में पब्लिश हुआ था, 36 में शायद. वो 36 में पब्लिश हुआ. उससे पहले भी एक नॉवल पब्लिश हुआ था, द वेल ऑफ लोनलीनेस. रोमन अ क्लेफ स्वाति होता है. रोमन अ क्लेफ का मतलब होता है नॉवल विद अ की. ओके. ऐसा नॉवल, हिंदी में समझा रहा हूं, ऐसा नॉवल जिसके कैरेक्टर्स को रियल लाइफ के पीपल के साथ इजीली एसोसिएट किया जा सके. ओके. इसका मतलब है कि कोई राइटर ने जब कुछ लिखा तो उसको ऐसा लगता है, उसके जो कैरेक्टर्स उसने लिए हैं नॉवल में, द कैरेक्टर ही हैज टेकन और शी हैज टेकन इनटू द स्टोरी or in that novel, in that drama, somewhere they were based on the live characters, and very easily we can recognize them. Clear? So that kind of novel is called Roman a clef. Okay.
So The Well of Loneliness, this novel was written by रेडक्लिफ की स्पेलिंग लिखिए आर, वो एनी रेडक्लिफ, वो रोमांटिक राइटर नहीं जिन्होंने गॉथिक फिक्शन लिखी थी, वो नहीं, ये अलग राइटर है, ये 20th सेंचुरी की राइटर है। RADCLYFFE, रेडक्लिफ हॉल, रेडक्लिफ हॉल। ओके, अच्छा, suppose the moment I start talking about all the feministic novels with say lesbian theme, okay, तो उसमें एमी लॉवेल का भी नाम आता है, लिखिए, ये शी वॉज अ पोएट, एवरीबडी नोज एमी लॉवेल, AMYLOWELL। आपको याद है वो अमेरिकन पोएट जो इमेजिस्ट या इमेजिज्म पोइट्री लिखती थी वो, ठीक है। इमेजिज्म एक स्टाइल होता है, एजरा पाउंड का नाम बहुत फेमस है उसके लिए, जिसमें वो क्या करते हैं, इकोनॉमी ऑफ इमेजेस। इमेजिज्म जिनको नहीं पता वो एक सेकेंड में समझ जाओ। Imagism is a style of writing poetry in the 20th century where these writers, who were poets, they said that once we write a poem, then we should not use more than necessary words. And this imagism kind of poetry was influenced by haiku, the Japanese style of poetry in which there are 3 lines. Clear? तो एक बहुत शॉर्ट में मैंने आपको हिस्ट्री बता दी। सो एमी लॉवेल इज अगेन अ वेरी फेमस राइटर, एंड उनको अमेरिका में पुलित्जर प्राइज मिला था 1926 में पोइट्री के लिए। अ डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास, उनका भी एक लिखा हुआ वर्क है, अ डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास, ठीक है। एक और नॉवल का नाम लिखिए, जेन बॉवल्स एक और राइटर हुई हैं, जेन बॉवल्स, BOWELS, JANE, जेन बाउल्स, लिखते जाइए। जेन बाउल्स का टू सीरियस लेडीज is also very famous. Two Serious Ladies. So I stop here and I revise the everything, like so far what I have talked about. I have talked about Robert Graves' fictionalized autobiography, Goodbye to All That, published in 1929. Then I talked about David Jones' Anathemata. It was published in 1952. इन दोनों पे क्वेश्चन आएगा. Then John Cooper Purvis, ये एक बहुत ही वास्ट और इडियोसिंक्रेटिक का मतलब होता है अजीब सी, खुद के स्टाइल में लिखा हुआ इनका नॉवल, जिसका नाम है ग्लास्टनबरी रोमांस, GLASTONBURY, ग्लास्टनबरी रोमांस 1932 में पब्लिश हुआ था। इसमें होली ग्रेल की और आर्थुरियन लेजेंड की कहानी है, ठीक है। फिर स्टीफन स्पेंडर की जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत फेमस ऑटोबायोग्राफी है, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, 1951 में पब्लिश हुई थी, उसके बारे में मैंने बताया। फिर विलियम जरहार्डी का के 2 नॉवेल्स पे हमने डिस्कशन किया, फ्यूटिलिटी, जिसका सबटाइटल है अ नॉवल ऑफ रशियन थीम्स, पब्लिश्ड इन 1922, एंड देन द पॉलीग्लॉट्स, जो बहुत फेमस है। इसके प्रोटैगोनिस्ट का नाम मैंने बताया, जो पूछा जाएगा एग्जाम में आपको, जॉर्जेस हैमलेट अलेक्जेंडर डायाबोलो, ठीक है। और उसके बाद आई टॉक्ड अबाउट नाइटवुड, रिटन बाय जूना बार्नर, 1936 में पब्लिश हुआ। इट इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ सम इंपॉर्टेंस एज अ लेस्बियन फिक्शन, ओके। एंड देन आई टॉक्ड अबाउट रोमना क्लेफ, अ काइंड ऑफ नॉवल, ओके, in which there is, its exact meaning is novel with the key, and it means where the characters have some similarity with the living famous personality, okay. And then Emmy Lovell, I talked about, images, American writer, won Pulitzer Award in 1926, her book A Dome of Many Colored Glass, okay. And उसके बाद जेन बॉवल्स का नाम लिया मैंने, जिसमें नॉवल का नाम है टू सीरियस लेडीज, ओके। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए द सन ऑल्सो राइजेस। इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मॉडर्निस्ट नॉवल इन मोर देन वन सेंसेस, ओके। राइट डाउन, द सन ऑल्सो राइजेस। Kindly share this video in different groups where you are members, or at least on your page if you are watching me, and I will upload this video on my YouTube channel. Mukesh Parikh Cosmos is the name of my YouTube channel. You can re-watch it so that and don't underestimate the power of these lectures because it's a proof now that many students positively say that the kind of things I have assimilated in these lectures they already have seen in the exam, or say if they appear in the exam they directly see these questions there. Clear? चलिए, द सन ऑल्सो राइजेज एक बहुत फेमस 1925 में पब्लिश नॉवल है हेमिंगवे का।
आपने नाम सुना होगा। तो जो हेमिंगवे है उन्होंने इस नॉवल के अंदर अपने स्पेन की ट्रिप के बारे में लिखा है, ठीक है। और जब इस नॉवल की हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज आ जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो दिस नॉवल इज फेमस फॉर अर्नेस्ट हेमिंगवेज कॉन्सेप्ट ऑफ आइसबर्ग थ्योरी। Iceberg theory we already have talked about, but still I will I will talk at length about this iceberg theory also. Iceberg में क्या होता है? आइसबर्ग जो होता है पहाड़ होता है बर्फ का, इसमें कहते हैं कि भाई उसका 8वां हिस्सा डूबा रहता है और मेरे ख्याल से 2% हिस्सा उसका दिखता है अगर 10 में से बात करें तो। इन द सेम मैनर द राइटर ही वॉज अ जर्नलिस्ट, यू ऑल नो पहले, एंड उन्होंने इसको कहा है थ्योरी ऑफ ओमिशन। लिख लीजिए, आइसबर्ग थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ ओमिशन। मतलब he says that if you don't write many things and then you leave the reader to conjecture, to ponder upon the things, then I think it is a better style where many things are implied, many things are based on say connotative meaning, because there are two types of meaning, you all are aware. One is denotative meaning, that is on the surface, that is called literal meaning, clear? एंड दुख की बात क्या है कि हमारे देश में जब लिटरेचर के जो टीचर्स हैं ज्यादातर बचपन से ही they feel that their duty is over once they teach us the surface level or denotative meaning, but literature is always suggestive, okay? जितने भी symbolism हम पढ़ते हैं, जितने भी similes, metaphors और जितने भी literary terms हम पढ़ते हैं, figures of speeches हम पढ़ते हैं, उनको समझते वक्त लिटरेचर का जो मीनिंग हमें एंजॉयमेंट देता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं yes, 100% this novel is autobiographical because this is based on lost generation and the writers of that age, who were disturbed by World War First or First World War, they all migrated to Paris and they lived a kind of bohemian life. हिंदी में बोलूँ तो एक होता है ना, जिस कंट्री ने वॉर को देखा है या जो लोग जिन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट किया, थैंक गॉड इंडिया ने नहीं किया है, लेकिन मेरे नाना के परिवार में, मेरी नानी के यहाँ एक विडो रहती थी बहुत बूढ़ी। जब हम छुट्टियां मनाने जाते थे ना तो मुझे पता चला कि वो मेरी नानी की मामी थी, मैटरनल आंट ऑफ माई नानी, और उनकी कोई बच्चा नहीं था, वो विधवा थी, जवानी में विधवा हो गई थी और वो अपनी पूरी जमीन जायदाद मेरी नानी के नाम करके उन्हीं के घर में रहा करती थी। ये मैं बता रहा हूं आपको कि फिर मुझे एक दिन क्या हुआ, अच्छा वो शी वॉज ब्लाइंड, वो जवानी में अंधी हो गई थी रो रो कर, क्योंकि उनके हस्बैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मर गए थे। तो जब मैंने एक बार क्या हुआ कि उनके कमरे में मैं घुस जाता था, शरारती था, छोटा था, तो एक बार मैंने उनके हस्बैंड की तस्वीर जो इतनी सी थी उसको चुरा लिया, मतलब मैं देखने के लिए कि किसको, वो कमरा बंद करके और उसमें अपने हस्बैंड की तस्वीर को निकाल करके और उसके ऊपर हाथ फेरती थी ऐसे। तो मैंने एक बार उसको रोशनदान से देख लिया कि ये मतलब बंद होकर क्या करती है अंदर। तो मैंने देखा कि उनकी पूजा के बाद ये रूटीन था, वो कुछ मंत्र मंत्र बोलती थी। तो मैंने उसको एक दिन उनकी लकड़ी की एक पेटी होती है, उसको बॉक्स उसको निकाल के खोल के उसमें से वो निकाल ली। तो घर में हंगामा कर दिया उन्होंने कि वो गायब है। मैं चुपके से उसको रख दिया वापस। लेकिन वो हल्की सी घटना मुझे याद है, बिकॉज ही वॉज दैट फोटोग्राफ वॉज दैट ही वॉज वेयरिंग एन आर्मी यूनिफॉर्म। ओके, अब आप अंदाजा लगाइए कि एक जीवन बर्बाद हुआ उस आदमी के वर्ल्ड वॉर में मरने से। ओके, क्योंकि आपको पता है इंडिया की सेना का इस्तेमाल अंग्रेजों ने किया था वर्ल्ड वॉर में। अब अगर मान लीजिए चाइना से हमारा युद्ध जब हुआ, या मान लीजिए पाकिस्तान से हुआ, या भगवान ना करे अभी कोई वॉर हो, सो डोंट यू थिंक लाइक कारगिल में जितने लोग गए थे, कितनी लाशें आई थी घरों में। तो बॉर्डर पे भी रेगुलर टसल चलता रहता है, skirmishes and we see the bodies of martyrs and all. So जिन्होंने वॉर को देखा है उनके जो आइडियलिज्म जो होता है ना उनकी लाइफ का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब अंदाजा लगाइए वर्ल्ड वॉर में, वहां पे अ कंट्री वेयर इट वाज कंपल्सरी फॉर द यंग ग्रेजुएट्स टू पार्टिसिपेट इन द वॉर, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज कंट्रीज। सो उन्होंने जब अपने आंखों के सामने लाशें देखी या दे पार्टिसिपेटेड एनी हाउ, तो उनका जो जीवन से मोह था वो भंग हो गया। एंड इन दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स विच आर कॉल्ड द लॉस्ट जनरेशन नॉवेल्स एंड इन द मॉडर्निस्ट नॉवेल्स, होल मॉडर्निज्म is influenced by these losses, these apocalyptic visions, these doomsday visions of war
and the war ultimately creates economic crisis. Everybody is aware about 1929 Great Depression. तो हमारे यहाँ भी डिप्रेशन आई नहीं, हमने अभी पहली बार जीवन में इस क्राइसिस को देखा है. अच्छे खासे स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते होंगे. आज इनकम नहीं है बिल्कुल भी. मेरी इनकम अगर मान लो 100 रुपीज थी तो वो 20 रुपीज रह गई मेरे जैसे आदमी की, जो मैं इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाता था सुबह से शाम तक. इंस्टीट्यूट्स आर क्लोज्ड. और yesterday I happened to talk to a lawyer also, and he told me that clients are not coming. So now we are facing those kind of periods where everybody is economically tortured. Okay, and existentially we have really come to know what can a crisis be. ऐसे में हो सकता है, but then again there is a great difference between Indian mindset and the Western mindset. क्योंकि मैं exactly I cannot say that whole human condition is the same, because we are bred up, Hindus particularly, on a very different religion where there is less pessimism. क्लियर. लेकिन क्राइस्ट का तो आपको पता है, क्राइस्ट जो क्रॉस के ऊपर लटक रहे हैं, तो दे हैव अ काइंड ऑफ पेसिमिज्म इन देयर रिलीजन. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फिलॉसफी, दैट द फिलॉसफी ऑन विच अ पर्टिकुलर रिलीजन इज बेस्ड. ओके, हमारे यहाँ पे आत्मा का कॉन्सेप्ट है, एक से निकली दूसरे शरीर में गई, एंड देन वी आर टोल्ड दैट यू शुड नॉट मॉर्न डेथ. चलिए मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट आई वाज टॉकिंग अबाउट द सन ऑल्सो राइजेज. कई बच्चों को ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई द सन ऑल्सो राइजेज जो टाइटल है इसका क्या मतलब है. ये बहुत ही एग्जिस्टेंशियल टाइटल है. ये एक्लेसियास्ट एक बुक होती है क्रिश्चियंस की, लिख लीजिए एक्लेसियास्ट, ECCLAISTES. एक्लेसियास्ट से उन्होंने टाइटल लिया है. और एक्लेसियास्ट के अंदर एक बाइबल की लाइन है, वो मैं बोल रहा हूं, तुम लिख लो. द सन ऑल्सो अराइसेथ, द सन ऑल्सो अराइजेथ एंड द सन गोएथ. द सन ऑल्सो अराइजेथ एंड द सन goeth down and hasteth, HASTETH. hasteth मतलब जल्दी कर देता है. hasteth to the place where he arose. सूरज उगता है, सूरज ढलता है और वापस वहीं आ जाता है जहां पे वो था. Okay, don't you think like it's an existential idea? It talks about death and life, the cycle of birth. Okay. So the sun also rises. It means the kind of people the writer has shown through his characters in the novel. The writer wants to communicate a message, क्योंकि उसमें एक bohemian youth दिखाई है. How many of you are aware about the term bohemian? Write down. If you don't know, kindly please write down. Bohemian youth are, because when I talk about the sun also rises, I will not discuss the story. I leave it to you. I will simply talk about the protagonist, and when we read this novel, in the very beginning we see that the protagonist is playing tennis, and then he hires a prostitute and goes to a hotel to pass his time there in Paris. And that particular period was famous in 1930s around, where people migrated, expatriate writers. Most of them were expatriate writers. Expatriate writers का मतलब होता है कि वो writers जो अपने अपने देश से छोड़ करके या तो उनको निकाल दिया गया because they wrote something vulgar. Okay, so vulgarity भी बड़ा philosophical concept है. जब कभी कोई गाली निकालता है ना, मैं दोबारा बोलूं क्या पुष्पा? ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा. टाइटल जो एक्लेसियास्ट से उन्होंने लाइन ली है, द सन ऑल्सो अराइजेथ and the sun goeth down and hasteth to the place where he arose. Okay, this is an existential idea. I'll be talking about existentialism in the coming time. मैं बहुत ज़्यादा bilingual होके बोलता हूँ ताकि ज़्यादातर बच्चों को समझ में आ जाए कि the sun also rises जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो नॉवल है, ये 1925 में पब्लिश हुआ था. और उनका लॉस्ट जनरेशन, क्योंकि इसका जो एपिग्राम है ना, एपिग्राफ है जो, उसके अंदर ये लाइन लिखी है इन्होंने कि इसकी कि भाई यू ऑल बिलोंग टू दिस लॉस्ट जनरेशन. अब कई बार ये भी होता है कि बच्चे पूछेंगे कि क्या होता है लॉस्ट जनरेशन, पर इससे पहले कि आई टॉक अबाउट लॉस्ट जनरेशन, पहले उसको कंप्लीट कर देते हैं.
which I was talking about earlier, theory of omission and iceberg theory. तो आइसबर्ग थ्योरी उनकी एक नॉन फिक्शन बुक थी, हेमिंगवे की। लिखिए उस बुक का नाम, डेथ इन द आफ्टरमैथ, सॉरी आई एम सो सॉरी, डेथ इन द आफ्टरनून। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि उन्होंने जीन रीस का एक बहुत ही अजीब सा वर्क पूछ लिया था एक बार नॉवल में, एग्जाम में। दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन। देखिए इट्स नॉन फिक्शन, क्योंकि हमारे सिलेबस में नॉन फिक्शन एक कैटेगरी है ना, एक यूनिट है, आपको पता है, मैंने उस पर भी आपको अच्छे सा स्टडी मटेरियल दे रखा है। पुष्पिता, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। डेथ इन द आफ्टरनून, ठीक है, ये उनकी नॉन फिक्शन बुक है। इन दैट पर्टिकुलर बुक ही हैज गिवन अस द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ दिस आइसबर्ग थियरी। ओके, आई वांट टू रीड दिस होली बट टाइम डज नॉट परमिट मी, पर मैं आपको इतना बता देता हूं कि उनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है व्हेन ही राइट्स अबाउट दिस थ्योरी ऑफ ओमिशन। ओके, वो कहते हैं, अच्छा उन्होंने ये जो लिया है वो रुडयार्ड किपलिंग के कॉम्पैक्ट प्रोज से इन्फ्लुएंस होकर लिया था। ये भी आप लिख लीजिए, दैट फॉर हिज थ्योरी of iceberg theory or theory of omission, which is now as a very famous theory. Whenever a teacher teaches in a classroom about Hemingway, they always talk about this theory, theory of omission. Okay, उन्होंने जो, अगर आप इसीलिए कहते हैं कि ओरिजिनल पढ़ना चाहिए हमेशा, जैसे in some of my earlier classes I was talking about just so stories. just so stories जो है आपको पता है, नोबेल प्राइज विनर 1907 में जिनको नोबेल प्राइज मिला था, रुडयार्ड किपलिंग, जिन्होंने जंगल बुक लिखा है ना, उन्होंने एक खास किस्म का प्रोज स्टाइल डेवलप किया था विच वाज वेरी कॉम्पैक्ट, जिसके लिए मैं आपको पहले भी एक टर्म बता चुका हूं कि भाई एक दो तरह के टेक्स्ट होते हैं, एक होता है रीडरली टेक्स्ट, एक होता है राइटरली टेक्स्ट, है ना। सो जो मेरे स्ट्रक्चरलिज्म के 4-5 वीडियोज हैं अपलोड कर रखे मैंने किसी भी वीडियो को अभी तक लॉक नहीं किया है दूसरे लोगों की तरह। I saw that many people have locked their videos so that students cannot access to them, they have to pay, but अभी मैं थोड़ा सा philanthropist हो रखा हूँ। After the exam, this exam I will lock them, तो आप लोग प्लीज उनको देख लीजिए अच्छी तरह से जाकर के। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मुकेश पारिक कॉस्मोस, वो 4 वीडियोज हैं, वो लाइव क्लास पर बेस्ड हैं, उसमें मैंने पूरा स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर जो मेजर राइटर्स हैं उनको डिस्कस कर रखा है। वहां पे आपको 5 कोट्स ऑफ रोनाल्ड बार्थेस भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है, जिन पे क्वेश्चन आएगा इस बार। तो क्या लिखा है इन्होंने अपनी ओमिशन थ्योरी में, या व्हाट वी कॉल इट दिस थ्योरी ऑफ ओमिशन और आइसबर्ग थ्योरी, कि ओमिट एनीथिंग एंड द ओमिटेड पार्ट वुड स्ट्रेंथन द स्टोरी। ये इसका बेस है, ओमिट एनीथिंग एंड द ओमिटेड पार्ट वुड स्ट्रेंथन द स्टोरी। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जैसे कल मैंने आपको जो एक छोटी सी पिक्चर मेरे बर्थडे गिफ्ट का वो था, रिटर्निंग गिफ्ट आपको दिया मैंने, आप बिकॉज ऑनलाइन ऐसे ही दे सकते हैं हम तो आपने उस फिल्म में देखा होगा कि देयर इज नो डायलॉग। ओके, अच्छा आपने उसको समझा उस फिल्म को? 2 जो मैंने सत्यजीत रे का एक फिल्म फेबल आपको कल दिखाया, उसका डीपर मीनिंग समझ में आया क्या आपको? आई एम सॉरी, आई एम डाइग्रेसिंग, जो बच्चे बाद में जुड़े उनको अजीब लग रहा होगा, अगर नहीं है तो आप मेरी उस फिल्म को देखिए जाकर के, मैंने कल उसको शेयर किया है। उसका एक डीपर मीनिंग है, आपने नोटिस किया होगा कि रिच एंड पुअर का कॉन्सेप्ट दिखा रखा है उसमें। एक रिच लड़का है, उसने मिकी माउस की कैप पहन रखी है उस जमाने में, और कोको कोला पी रहा है, दैट डिपिक्ट्स द मार्केट एंड कंज्यूमरिज्म एंड ऑल, एंड ही हैज ऑल द डिफरेंट टॉयज। ओके, बट देन देयर इज अ पर्टिकुलर टॉय जिसमें उसने पिज्जा की मीनार बना रखी है, एक बहुत लंबी सी, that depicts symbolically Western world and fellow, और से what we call it phallocentrism। आपको पता है एक लंबी कोई भी चीज है कुतुब मीनार जैसी, वो मेल सेक्सुअल ऑर्गन का सिंबल होती है, साइकोएनालिसिस अगर हम करें, ठीक है। वॉच की बात नहीं कर रहा हूं मैं शत्रुपा, मैं बात कर रहा हूं कि उसका डीपर मीनिंग समझा रहा हूं। अब आपने देखा होगा एक रोबोट भी दिखाया खिलौनों में, और नीचे अगर जिस बच्चे ने पाथेर पांचाली मूवी देखी है, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे गए हैं, स्टडी में पढ़ाई जाती है आजकल सत्यजीत रे की। पाथेर पांचाली में आपने देखा होगा वो रेलवे का सीन अलग से यूट्यूब पे दे रखा है, जिसमें वो बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, वो बच्चा बांसुरी बजा रहा है, फिर वो पतंग उड़ाता है, फिर वो शेर का मुखौटा ओढ़ के आ जाता है, मतलब गरीबों के खेल। और ऊपर से वो जो लड़का है अमीर का, वो उसके खेल को डिस्टर्ब करता रहता है गुलेल से, फिर वो उसकी पतंग को पिस्तौल से काट देता है ना। लेकिन आपने नोटिस किया है
कि वो जीत मना रहा है अपनी कमरे में बैठ करके अपनी बबल गम को खा, मतलब उसने देखो बबल गम को खा करके उसका जो गम है उसको वो चिपका रहा है। वो एक सिंबॉलिक सीन है जिसमें वो ये बताना चाह रहा है डायरेक्टर कि नाउ ही हैज यू नो टेस्टेड हिज सक्सेस बाय डिस्टर्बिंग द पुअर। लेकिन आप थोड़ी देर में वापस से वो लड़का अपनी पतंग को खो करके वापस से बांसुरी बजाने लगता है। मतलब दैट साइक्लिक नेचर ऑफ हिज एंटरटेनमेंट, गरीब। और इधर इसकी जो पिज्जा की मीनार है वो रोबोट को चाबी भर के जब चलाता है तो वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है। ही इज डिस्टर्ब्ड बाय द फ्लूट साउंड यू नो विच इज कमिंग फ्रॉम द विंडो, आउटसाइड द विंडो। तो और इधर वो जो मीनार है वो गिर जाती है। सो दैट डिस्ट्रक्शन एंड द रिच विल अल्टीमेटली गेट डिस्ट्रक्टेड बाय नेचर। ओके, एक बहुत गहरा मीनिंग है उसके अंदर। और साइलेंट मूवी है जिसमें बाइलिंगुअलिज्म का वॉट लग गया, जिसमें जिसमें द राइटर यू नो ट्राइज टू शो you know without dialogues, by just simply showing the scene that how the rich and the poor, the bourgeois and the proletariat classes and all. तो मार्क्सिस्ट की थीम, मार्क्सिज्म की थीम है, साइकोएनालिसिस की थीम है। और उसके अंदर नहीं कहते हुए भी राइटर ने बहुत कुछ कह दिया जस्ट बाय यू नो लुकिंग एट द सिंबल्स। सो आई फील के जो स्टूडेंट लिटरेरी है वो उस फिल्म को जरूर देखेगा और वो कमेंट जरूर पढ़ेगा, कमेंट सेक्शंस पढ़ेगा। तो अगर आपने एक पढ़े लिखे आदमी को हैप्पी बर्थडे बोला है तो उसका जो रिटर्निंग गिफ्ट होगा वो भी तो काफी इंटेलेक्चुअल होना चाहिए ना। तो मैंने देखा कि ओनली हार्डली 20 पीपल हैव सीन दैट। तो ये गलत बात है, आपको सबको उसको देखना चाहिए जाकर के, ठीक है। चलिए, सो आई जस्ट यू नो ब्रॉट इनटू माय लेक्चर दैट फिल्म फेबल बाय सत्यजीत रे जिसका नाम है TWO2, just to explain to you this theory of omission, or say iceberg theory, कि omit anything and the omitted part would strengthen the story। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, लॉस्ट जनरेशन की क्वालिटीज लिखिए फटाफट से, राइट डाउन। लॉस्ट जनरेशन में क्या क्या होता है। लॉस्ट जनरेशन जो टर्म है वो भी आपको पूछेंगे कि भाई वो जर्ट्रूड स्ट्रेन की दी हुई टर्म है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट लिखिए आप लोग, दे आर डिसओरिएंटेड, राइट डाउन। The lost generation writers and the people of the starting part of the 20th century, those who witnessed the World War, first World War, disoriented, wandering, okay, wandering, directionless। जो दोबारा से कुछ सुनना चाहते हैं इस क्लास को, I will upload it on my YouTube channel मुकेश पारिक कॉस्मॉस, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी सारी वीडियोस देखिए, वहां पर ये अपलोड हो जाएगा वीडियो, ओके। डिसओरिएंटेड, वैंडरिंग, डायरेक्शनलेस, ओके, एंड दीज वर द बेसिक क्वालिटीज ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सेकेंड थिंग, द टर्म इज यूज्ड फॉर अमेरिकन एक्सपैट्रिएट्स, जो मैंने बता दिया था आपको, हु वर लिविंग इन पेरिस इन 1920s, ठीक है। जर्ट्रूड स्टेन का नाम लिखिए, GERTRUDE, जर्ट्रूड स्टेन, STEIN। Gertrude Stein is credited with coining the term. They may ask you this question, okay? Who used it? इसकी थ्योरी में नहीं बताऊंगा कि उन्होंने कहा एक्चुअल में क्या है कि वो अपने कोई कार को गैरेज में सही करवा रही थी और वो जो कार गैरेज का मालिक है वो अपने बॉयज को बुला रहा था, तो उसने देयर ही यूज द वर्ड लाइक जनरेशन परड्यू, मतलब फ्रेंच में बोला तुम खो रखे हो बिल्कुल। सो अगर हम आज की जनरेशन को देखें, जस्ट इमेजिन, आपने वो मीम देखा है where there are thousands of people, you know, they have their cell phone in their hands and they're typing something and they're bowed and looking just to the phone, okay। आपने कई बार सुना होगा ना कि कानों में क्या कहते हैं उसको, ईयरफोन लगा करके रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए वो रेल की पटरी पर कट गया। सुना है कभी आपने ऐसे एक्सीडेंट्स? मैं तो अखबार में चौथे दिन ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। आपको नहीं लगता कि फोन अटेंड कर रहा है, एक्सीडेंट हो गया, एंड दे आर वेरी मच सेल्फ सेंटर्ड, यू नो, दे आर बिजी इन टाइपिंग द मैसेजेस एंड ऑल। आज की जनरेशन बड़ा फास्ट मैसेज लिख देती है। देखिए, हम वी आर यू नो ग्रेट क्रिटिक्स ऑफ दिस जनरेशन। कभी भी आप देखिएगा, जैसे सपोज आई गिव यू लिस्ट ऑफ 10 essays एंड आई बेट यू विल नॉट फाइंड देम ऑन इंटरनेट।
because everything is not on internet, on Wikipedia, on the say encyclopedia and all. Diderot ने जो encyclopedia start किया, तो जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड की पूरी नॉलेज वहाँ है. नॉलेज बुक्स में है, तो आपके पास बुक्स होनी चाहिए और फिर आपका ओरिजिनल माइंड डेवलप होगा. तो आप भी हमारी तरफ क्रिटिसाइज करोगे. सो वर्ल्ड वॉर देखे हुए वो जो लोग थे, दे गॉट एंटैंगल्ड विद अपनी वैल्यूज को उन्होंने खो दिया. देयर आइडियल्स वर लॉस्ट, दे लॉस्ट देयर फेथ इन स्पिरिचुअलिटी. ओके, सो जर्ट्रूड स्टेन ने ये वर्ड कॉइन किया था. एंड अर्नेस्ट जो हेमिंगवे है, उन्होंने इसको द सन ऑल्सो राइजेस के एपिग्राफ में यूज किया. लाइन थी, यू आर ऑल अ लॉस्ट जनरेशन. यू आर ऑल. पॉइंट 2 था पुष्पिता, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर अमेरिकन expatriate writers living in Paris. Chaliye, okay, you are all a lost generation. That was, the line he used as an epigraph. Okay, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका जो एक मेमोir छपा था, memoir, write down the spelling, MEMOIR. I don't know how you pronounce this word. It is not memoir, it is memoir. Reservoir, repertoire, OIR का जो pronunciation होता है ना, that is pronounced like this. Okay, memoir, a movable feast, a movable feast. ये क्वेश्चन आएगा, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए पेन से. It was published posthumously. Posthumously का मतलब after his death. Okay, ये भी एक नाम है जो आपको एग्जाम में आ सकता है. ओके, नाउ जो लॉस्ट जनरेशन में कौन कौन से राइटर्स आ सकते हैं, देखिए उनके नाम हैं. अर्नेस्ट हेमिंगवे हो गया, टी.एस. एलियट है, लिख लीजिए, टी.एस. एलियट लिखिए. एजरा पाउंड, एफ. स्कॉट फिट्जरैल्ड. एफ. स्कॉट फिट्जरैल्ड, नाम सुना है एफ. स्कॉट फिट्जरैल्ड का? ओके. जीन रीज का नाम सुना होगा आपने. जीन रीज, वाइड सारगासो सी लिखा था जिन्होंने, वाइड सारगासो सी, which was a prequel of Jane Eyre. पता है कि नहीं पता? इस पे 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है नेट के अंदर. Okay, so F. Scott Fitzgerald was there, the writer I'm talking about, who fall in this category of lost generation. Gertrude Stein, who coined this term, and Ernest Hemingway. Okay, T.S. Eliot. You will be surprised that why T.S. Eliot, because he's also talking about fragmentation in his works. Clear? Ezra Pound. Okay, Jean Rhys. I gave you another term for another work of Jean Rhys. Jean Rhys is a very famous writer, friends. She wrote this Wide Sargasso Sea. आपका homework है आज का. You should read Wide Sargasso Sea. Okay, Sylvia Beach, Sylvia Plath नहीं, Sylvia Beach, B-E-A-C-H. Okay, these are some of the writers. Now let us talk about the themes of this lost generation. लिखो फटाफट लिखो. They give in their work the experiences of war. Write down. They give in their work the experiences of war. Okay, all of these works are say autobiographical in one or the other way. Clear? Autobiographical. Next is they have decadence in their novels. Decadence is a term, friends, you must be aware about. Decadence एक word है which was used in the fin de siècle period. Fin de siècle का मतलब होता है the end of the century. Clear? So आप आज इतना लिख लीजिए, I will deliver a separate lecture on that. Clear? Decadence. और उनका लाइफस्टाइल थोड़ा फ्रिवलस होता है. फ्रिवलस मतलब वेरी ऑन सरफेस लेवल. दे डोंट टॉक अबाउट ये. आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि जितना ज्यादा कंपनीज हमारा फायदा उठा रही हैं, दे आर मेकिंग अस जस्ट लाइक machines who are so programmed that we earn money and spend that money immediately. Clear? आपने कभी नोटिस किया होगा, पॉकेट में आजकल पैसा टिकता नहीं है. वो बहुत इंटेलिजेंट होगा जो अपना पैसा बचा के चले, बिकॉज थ्रू इमेजेस एंड मीडिया, थ्रू एडवर्टाइजमेंट, we are forced, certain necessities are forced and hurled upon us in this period, and we are made to think like certain things are very important for us, but they are not. उसके बिना लाइफ नहीं रुकेगी. लॉकडाउन पीरियड has proved that. Lockdown period is also a great slap on the face of these consumerist people who are creating industry and all.
ये मैं बाद में बात करूंगा. आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्रिवलस लाइफस्टाइल. ये जो फ्रिवलस क्या होता है, यू जस्ट बिलीव इन सेक्स, you just believe in gossiping, playing, just lying about anywhere, earning just for the sake of spending and all. That is called frivolous, having no higher aims, no spirituality, because you have lost your faith because you have seen deaths in front of you. ओके सो जैसे मान लीजिए हम अपने आंखों के सामने डेथ देखें 2-4, तो फिर हमें लगेगा ये लाइफ तो बेकार है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है. ये गाना सुना है आपने? ये गाना कौन सी मूवी में है? प्यासा मूवी में है, गुरुदत्त साहब की, which is again Gurudutt Sahab is taught in the universities of France because he's the only philosopher other than Satyajit Ray. Is the another say director जिनका उनकी पोती हमारे घर के सामने एक लड़का रहता है जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर है, एंड उनकी पोती की शादी हमारे मतलब वो बहू बन के आई हमारे घर के सामने. So I was so excited to meet that lady because वो गुरुदत्त साहब की पोती है. तो what I was talking about, गुरुदत्त ने प्यासा फिल्म में वो जो एग्जिस्टेंशियल गाना लिखा है, if you are aware about and if you are lover of classical movies and all, then you can understand what I want to convey. Clear? अच्छा, ग्रेट गैट्सबी आपने पढ़ा है? ग्रेट गैट्सबी, आई विल डिलीवर अ लेक्चर ऑन दैट आल्सो. आप देखिए ग्रेट गैट्सबी में ऐश वैली का कॉन्सेप्ट है, उसमें लेविश लाइफस्टाइल दिखा रखी है. लोग खरीद रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग मनी, दे आर डांसिंग लाइक एनीथिंग. जैज एज का जो कॉन्सेप्ट है, what is this jazz age all about? This is all about you just start living in a hippie culture because you have lost your interest in the higher idealistic values of life, which were given to you, but this is a world war, this smashed everything. ठीक है? Death of the American Dream is another theme. Death of the American Dream. आप ग्रेट गैट्सबी का एक लाइन पढ़े ना अगर ओरिजिनल, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि अमेरिका को एस्टैब्लिश किया गया था एक ड्रीम के बेस पर, दैट ड्रीम ऑफ इक्वालिटी. लेकिन आपने देखा होगा बूट लेगिंग का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब करप्शन इज देयर, क्या बोलते हैं उसको, स्मगलिंग इज देयर, रिच आर गेटिंग ऑल ऑफ अ सडन रिचर and the poor are getting poorer. That chasm between the rich and the poor, that was widening day by day. So it means your due, the due of your hard work is not reaching you. Okay, so you have created that period. और जब आपके साथ ऐसा होने लगता है, then you feel that somewhere your idealistic values are lost. Clear? So what I talk about, the dream that everybody will be equal, there will be a democracy, there will be a kind of say egalitarianism in America. तो जो हमने आपको पिछली क्लास में the glass menagerie I taught you, that also talks about the shattering images of American dream of success, and that American success myth is shattered. So these writers they show all these things. Clear? And इसके हीरो का नाम लिख लीजिए, जो the book we were talking about, The Sun Also Rises. Jack Barnes, J-A-C-K, Jack B-A-R-N-E-S. ठीक है, जैक बार्नेस. उसके बाद आ जाइए. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द मैगजीन डायल? द डायल मैगजीन. डायल मैगजीन का कुछ आइडिया है आपको? लिख लीजिए, इस पे क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है. मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि you would watch my video on my YouTube channel about transcendentalism. पहले आप मुझे उसका रिस्पॉन्स दो, उसके बाद ही मैं आगे पढ़ाऊंगा. Did you really watch that video? Did you really note down the points like what transcendentalism is all about? Because it is very tough concept. Easily समझा दूं तो American romanticism, where the writers like Walt Whitman and Emerson and all are writing. But it's not as easy as to understand, because today in English dictionary the meaning has a very different meaning. This transcendentalism is all about transcend. Transcend means to when your soul moves, it goes up, transcends. But transcendentalism is altogether a very different concept. पहले आप मुझे जवाब दो, did you really watch that video or not? Priyanka Shaukin says that she really watched. Congratulations. और आज का अवार्ड मिलता है प्रियंका शौकीन को.
बाकी लोगों का कोई आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब उन्होंने नहीं देखा है। तो आप इसको काम को आज कर लो, ठीक है, मुझे नाराज मत करो। टीचर को हमेशा खुश रखते हैं। टीचर को खुश रखने का बेनिफिट बताओ। चलो, खुश टीचर बहुत कुछ देता चला जाएगा आपको। हम अपने टीचर को बहुत खुश रखते थे क्योंकि जरा सी नाराज हुई नहीं, और जो असली टीचर होते हैं वो नाराज भी हो जाते हैं। वो किस बात पे नाराज होते हैं हमें भी नहीं मालूम, लेकिन टीचर को कभी नाराज नहीं करते। ओके, और टीचर को कैसे खुश करते हैं? उसका काम करके, रेगुलर क्लास में आके। ओके, और प्राइवेट टीचर को फीस दे करके भी खुश कर सकते हैं कि उसकी फीस समय पर दे दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वॉज जस्ट जोकिंग, लेकिन जोकिंग वॉज वेरी सीरियस। ओके, अच्छा, अब मैं आपको एक, टाइम बहुत कम रह गया है हमारे पास, मैं आपको एक पोएम पढ़ाना चाहता हूं। मेरे वेबसाइट पे आइए, englishcosmos.org या mukeshparik.com, मेरी वेबसाइट पे आ जाइए और ब्लॉग खोलिए और मुझे बताइए कौन सी पोएम मैंने वहां पे अपलोड कर रखी है। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू स्प्लिट देयर स्क्रीन ऑन फोन, और दे कैन हैव एक्सेस टू अनदर फोन फ्रॉम योर हाउस। ओके, किसी का, भाई का, बहन का, मम्मी का, डैडी का कोई फोन लैपी ले लीजिए, इंटरनेट अगर है तो, एंड गो टू माई वेबसाइट इमीडिएटली। माई वेबसाइट पे मेरा एक ब्लॉग है, इजीली यू कैन सर्च दैट ब्लॉग देयर and open that blog in the name of under the title 11th September 2020. I have uploaded a poem there. So let me ask you, you are going to tell me which poem I'm talking about. Go to my website. I know only the regular students will go there. मोबाइल की स्क्रीन को भी स्प्लिट कर सकते हो आप लोग। स्प्लिट स्क्रीन का कॉन्सेप्ट सीख लीजिए जल्दी से जल्दी, जितनी दिन लॉकडाउन है और हमको पढ़ना पड़ रहा है ऐसे। Let me take my anthology. I'll be teaching that poem to you today, and I'll be talking about many things about that poem. I've got 2 answers. जब तक सब लोग आंसर नहीं देंगे मैं पढ़ाना स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जितने आंसर आएंगे you have only one. तो आप सिर्फ सुनो, क्योंकि आप आंसर दोगे इसका मतलब है यू आर द सीरियस स्टूडेंट्स एंड यू हैव द फुल राइट टू स्टे ऑन द पेज एंड वॉच मी। जल्दी कीजिए। रेगुलर स्टूडेंट्स शू गो टू माई ब्लॉग विच इज ऑन माई वेबसाइट। वेबसाइट्स आर mukeshparik.com और englishcosmos.org. I'm waiting. मिस्टर हसन, नाम तो बताइए पोएम का। यस लिखने से क्या होगा? टेल मी द नेम ऑफ द पोएम। इवन आई डोंट नो बिकॉज ओनली 12 eyes are watching me right now, but I know there are many students watching me right now. I'm waiting. Yes, good, Hari Prasad. I've got some answers now. What about the rest of the people? Go to my blog, mukeshparik.com is my website. You will find my blog easily there. Okay, I have uploaded there a very famous poem, The Second Coming by W.B. Yeats. Okay, now I am reading and explaining line after line this poem. मैं बहुत दिनों बाद पोएम समझा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन में पोएम नहीं पढ़ाई जाती है, बट ये पोएम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एग्जाम में आ सकती है। द सेकेंड कमिंग का मतलब लिख लो पहले तो। सेकेंड कमिंग मीन्स क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट है कि क्राइस्ट को जब क्रूसीफाई किया गया था, तो जब उनकी डेथ हुई थी तो उन्होंने ऐसे कहा था कि मैं दोबारा जन्म लूंगा। इसका ये मतलब है, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, सो द राइटर इज टॉकिंग अबाउट, अच्छा ये पोएम इसलिए फेमस है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूं आपको आइडिया भी नहीं होगा। ये इनकी जो वाइफ थी, उनकी वाइफ का नाम था, लिख लो, जॉर्जी हाइड लीज। जॉर्जी हाइड HYDE लीज LEES। जॉर्जी हाइड लीज W.B. येट्स की वाइफ का नाम था। शी वॉज प्रेग्नेंट एंड शी कॉट दैट फ्लू जो 1918 में और 1919 में फैला था, एंड शी वॉज अबाउट टू डाई। हालांकि वो मरी नहीं बाद में, क्योंकि ऐसा मतलब ज्यादातर प्रेग्नेंट विमेन को ये फ्लू हो जाया करता था, हाई रेट थी। जैसे अभी हम देखते हैं कि जिनको कोई पहले से बीमारी है उनको ये वाला कोविड फ्लू जल्दी लग रहा है, तो ऐसे ही ये फ्लू पर बेस्ड पोएम है। मतलब W.B. Yeats, he had some
personal experience of वर्ल्ड वॉर तो था ही, वर्ल्ड वॉर वॉज देयर, देन आयरिश जो इंडिपेंडेंस वॉर चल रही थी, आपको पता ही है 1916-17 में आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो सिविल राइजिंग हुई थी वहाँ पे आयरलैंड में. So all these things combinedly gave the writer an idea, and then he wrote this poem. Clear? The second coming. Turning and turning in the widening gyre. The writer has created a symbol. This writer is also famous for creating private and personal, private and public symbols. Public symbols क्या होते हैं? ऐसे symbol जैसे rose is a symbol of love and soft emotion, that is known to everybody. Okay. बट एक प्राइवेट सिंबल भी होता है जो मैंने अपने आप ही क्रिएट किया हो. सो द राइटर इज फेमस फॉर राइटिंग पर्सनल सिंबल्स ऑल्सो. ठीक है. और इस पोएम के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये सबसे पहले द डायल में पब्लिश हुई थी, लिख लीजिए 1919 में. दैट्स व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट मैगजीन द डायल. ओके. इट वाज पब्लिश्ड, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1919 इन द डायल. और इसको ध्यान से पढ़ते जाइए. Turning and turning in the widening gyre. Gyre का मतलब घूमना. The falcon cannot hear the falconer. Falcon का मतलब होता है बाज. ठीक है. बाज को आपको पता है पालते हैं. पहले बताओ, आपने गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर देखी है क्या, जिसपे वो ऐसे बाज बिठाते हैं यहाँ पे. सो दिस पर्टिकुलर हॉक जिसको बोलते हैं अपन, इसको लोग पालते हैं. And hawk is that image of, you know, a violent animal. But again, this violence can be controlled. It was under control earlier. Okay. But the writer, by looking at this world war, somehow by creating this sense, and then the writer is also aware about the cyclic nature of history. That तो इन्होंने जायर का जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी इसमें एक वर्ड आएगा स्पिरिटस मुंडी. तो the writer is talking about the repetition of history and all. Clear? So the turning and turning in the widening. Widening means it is becoming wide and wider and wider. Okay. Gyre, the falcon cannot hear the falcon. चलिए अब फटाफट से आपको एक चीज सिखाता हूं. सबसे पहले तो लिखिए, ये इसमें कौन सी लिटरेरी टर्म आई है. इसमें लिखिए आपको एक द राइटर हैज यूज्ड अ लिटरेरी टर्म. उसका मैं नाम बता देता हूं आपको. एक सेकेंड रुकिए. पॉलिप्टॉन होता है, मैं उसका डिटेल बताना चाह रहा था आपको. या लिखो पॉलिप्टोटॉन. POLYPTOTON. पॉलिप्टोटॉन. POLYPTOTON. मुझे अच्छी तरह से पता है, ज्यादातर बच्चों ने ये कभी नहीं सुना. ठीक है. अब लिखिए इसमें क्या होता है. ये लिखिए, दैट इन्वॉल्व्स द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स. That involves the repetition of words derived from the same root. Derived from the, तो पॉली वर्ड आ गया ना, पॉली मतलब ज्यादा. तो पॉलिप्टोटॉन का क्या मतलब होता है. एक राइटर किसी एक पोएम में किसी जैसे एक ही वर्ड से, जैसे फाल्कन एंड फाल्कनर एक ही रूट से बने ना ये वर्ड. सो इसमें ऐसे कहा जाता है कि ये पॉलिप्टोटॉन नाम की लिटरेरी टर्म राइटर यूज कर रहा है. ओके. समझ में आ गया. So what is he saying? The falcon cannot hear the falconer. तो जो cruel और जो violent bird है, ये अब he has let loose and he is not under the control of the controller. Things fall apart. बताने की जरूरत नहीं है. चिनुआ एचेबे ने अपना नॉवल इसी पर बेस किया था. Things fall apart means कि center cannot hold. ये लाइन देखिए बहुत फेमस है. The center cannot hold. मतलब कि जो कुछ भी सिविलाइजेशन को होल्ड करके रखता है, वैल्यूज, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, गुड क्वालिटीज, अब वो काम नहीं आ रही हैं एंड जो संसार है वो टूट रहा है. डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी. ओके. थिंग्स फॉल अपार्ट. समझ में आ रहा है. मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड. चारों तरफ एनार्की ही एनार्की है. ठीक है. एनार्की का मतलब पता है ना आपको. लॉलेसनेस, एबिस उसको बोलते हैं. द ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज्ड. ब्लड डिम्ड टाइड. चारों तरफ खून ही खून है, बाढ़ आ रही है खून की. एज लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन्ड. मुझे याद दिला देना, मैं अगर भूल जाऊं तो. मुझे कल आपको एक पोएम इनकी और पढ़ानी है. एक इनकी क्या नाम है, प्रेयर फॉर माई डॉटर. लिख लीजिए.
there also the writer talks about the same themes the writer has created there, and that poem is notorious for being a very anti-feministic poem, but symbolically that poem is very good. चलिए अब मैं आपको एक चीज पे बात करूंगा, ये जो लाइन समझाऊंगा मैं आपको, द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस. The writer was very much influenced by Lady Gregory. आपने लेडी ग्रेगरी का नाम सुना है, लिख लीजिए. वन हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ओपनिंग द एबी थिएटर. ओके, ये वो सिंसियर लोग हैं बच्चों. आपको मैं अगर डब्ल्यू बी ईट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊं तो ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैनी इंडियन राइटर्स. सबको मालूम है कि गीतांजलि का जो प्रेफिस है इन्होंने लिखा था, बट ये यहाँ पर केवल इतने से काम नहीं चलेगा. He was too much influenced by the non-violence of the concept there in our Upanishads. Okay, और उन्होंने उनका एक 1885 में मोहिनी चैटर्जी जो कि इससे एनी बेसेंट से इन्फ्लुएंस्ड थे, एंड थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी उसके चक्कर में वो एक बार वहाँ गए थे. क्या आयरलैंड की राजधानी का नाम क्या है? डबलिन, 1885 में. तो मोहिनी चैटर्जी से उनकी वहाँ मुलाकात हुई थी, और इन्होंने 3 पोएम्स इंडिया पे लिखी है जो बहुत फेमस है हिंदुइज्म पे. लिखिए, पहले लिख लीजिए, एक्स्ट्रा बातें लिख लीजिए ताकि आपका केवल पोएम के साथ साथ और भी बातें टच हो जाए. लिखिए, द इंडियन टू हिज लव. द इंडियन टू हिज लव, दैट इज अ फेमस पोएम रिटन बाय, ये इनकी ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजी में आती है ये पोएम. ओके, दोबारा बोलता हूं, द इंडियन टू हिज लव. सेकेंड लिखो, द इंडियन अपॉन गॉड. द इंडियन अपॉन गॉड. ओके, थर्ड लिखिए, अनुसुया एंड विजया. अनुसुया जो हमारी सतियों में आती है ना, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना दिया था और बाद में उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि हम तुम्हारे पेट से पैदा होंगे. फिर वो जो एक भगवान है ना जिनके 3 मुंह हैं ब्रह्मा जी के अलावा, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, वो इनके पेट से पैदा हुए थे, तो वो सती की कैटेगरी में आती हैं अनुसुया. सो दैट मच नॉलेज ही हैड, आपको और हम मुझको इतनी नॉलेज नहीं होगी हिंदुइज्म की जितनी डब्ल्यू बी ईट्स को थी. ये 3 पोइम्स हैं, उन्होंने कालिदास को भी ट्रांसलेट किया था और पढ़ा था, उनको गीतांजलि का प्रेफिस लिखा था. टैगोर का जो प्ले है ना, द पोस्ट ऑफिस, लिखिए, टैगोर्स प्ले द पोस्ट ऑफिस वाज प्लेड एट द एबी थिएटर. राइट डाउन, द पोस्ट ऑफिस, अ प्ले बाय रविंद्रनाथ टैगोर. बहुत फेमस है, पढ़ा जाता है, इस पर क्वेश्चन भी आता है. एक बच्चे की कहानी है जिस तरह वो कैसे अचानक से बीमार हो जाता है और वो किस तरह से इंतजार करता रहता है किसी चिट्ठी का. बहुत फेमस ड्रामा है, ये एबी थिएटर में परफॉर्म होता है. सो सपोज दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन दैट विच प्ले ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वाज परफॉर्म्ड एट द एबी थिएटर. तो दिस वाज द प्ले. क्लियर? एंड एक क्वेश्चन आया था नेट में 3 या 4 नेट पहले कि कौन इंडियन स्वामी जी थे जिनसे ये इन्फ्लुएंस थे और मिले थे. नाम लिखिए, पुरोहित स्वामी. पुरोहित स्वामी से ये इन्फ्लुएंस थे और दोनों ने मिलकर के और उपनिषद को ट्रांसलेट किया था. मंडूक उपनिषद का मुझे कुछ याद है, बिकॉज जब मैंने लास्ट ईयर आई अपीयर्ड इन अ सेमिनार एट एमिटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव, दैट वाज ऑन इंडिक स्टडीज. Okay, and there I read a paper on the influence of Indian writings and Hinduism on W.B. Yeats. और इत्तेफाक से मैंने वो पेपर पढ़ते वक्त जो रिसर्च की थी उसी साल जो मैंने नेट दिया था दिसंबर में, शायद उसमें ये क्वेश्चन या शायद जून में ये क्वेश्चन आ गया था. तो आपकी बहुत वास्ट रीडिंग रहने पर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो मैंने एक पेपर पढ़ा था क्योंकि इस पोएम के अंदर राइटर ने ना क्राइस्ट की सेकेंड कमिंग दिखाई है. तो एक बहुत ही मतलब जिसको बोलते हैं ना अपन, बहुत ही ग्रोटेस्क इमेज बताइए क्राइस्ट की, जो एक शेर की तरह चलते हुए आ रहे हैं, क्रूअल रूप दिखाया क्राइस्ट का. तो आई थॉट लाइक इट्स एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर एक्चुअली. तो जो नरसिंह अवतार है ना, तो अगर मान लो आपको वो एक क्वेश्चन पूछ ले कि इन विच पोएम ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नरसिंह अवतार, वो पूछ लेंगे, मुझे मत कहना बाद में, बिकॉज समवेयर this writer was influenced by Hinduism and he was so much influenced, but he could not make a visit to India during his lifetime, but somehow he was too much influenced by Indians and their struggle for freedom also, because Ireland was also captured by the English, and
India was also captured by the English. Both were the colonial countries, clear, colonized countries, sorry. So इस तरह से ये आपको मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें बता दी हैं जो बहुत जरूरी है. एक आपने पॉलीप्रोटॉन का नाम सुना, ठीक है. अभी मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं. चलिए आप लिखिए, एक और लिखिए डायाकोप, एक और लिटरेरी टर्म लिखिए, फिगर ऑफ स्पीच है डायाकोप, DIACOPE. डायाकोप, DIACOP, डायाकोप. डायाकोप क्या होता है? एक फ्रेज को ना कहीं हम रिपीट कर लेते हैं. फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड विद अ स्मॉल नंबर ऑफ इंटरवीनिंग वर्ड्स. डायाकोप इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड or phrase is repeated with a small number of intervening words. ठीक है. आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं. इसमें तो बताऊंगा यार, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर. टर्निंग एंड टर्निंग, ये जो रेपिटेशन आ रही है इसको डायाकोप भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है. आपको याद है एना कैरेनिना, रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय. लियो टॉल्स्टॉय, अभी जिन स्टूडेंट्स को फिक्शन का PDF मिला है बहुत, उसमें लियो टॉल्स्टॉय की कहानियां भी मैंने दी हैं आपको. ओके. वॉर एंड पीस जिन्होंने लिखा, इतना मोटा नॉवल है वॉर एंड पीस. तो व्हेन आई आस्क माय स्टूडेंट्स टू रीड दैट, दे ट्राई टू कमिट सुसाइड इंस्टेड ऑफ रीडिंग दैट नॉवल. चलिए, तो एना कैरेनिना की फर्स्ट लाइन बहुत फेमस है. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट लाइनर्स मिल गए होंगे. मैंने लगभग अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर रखा था और मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर किया था. पर्सनली तो सबको नहीं दिया था. 100 इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफरेंट नॉवेल्स एंड ऑल. चलिए लिखिए, एना कैरेनिना की फर्स्ट लाइन है, हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक. हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, कॉमा, every unhappy family is unhappy in its own way. I repeat, this is the first line of Anna Karenina, written by Leo Tolstoy. Anna Karenina को पढ़िएगा, शॉर्ट समरी से काम नहीं चलेगा, डिटेल में 3-4 आर्टिकल्स उस पर पढ़िएगा. You will come to know how sensitively the writer has written a story. जैसे हम फ्लॉबर्ट का मैडम बावरी पढ़ते हैं ना, इन द सेम कैटेगरी दिस नॉवल ऑल्सो कम, जिसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैमिली, सेक्रीफाइस. ओके. आपकी इच्छाएं तो बहुत दूर तक ले जाएंगी, बट देन अल्टीमेटली यू आर अ सोशल ह्यूमन बीइंग. क्लियर. तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो वर्ल्ड फेमस है और उसमें डायाकोप का यूज हुआ है. भाई एक जैसे हैप्पी वर्ड है, या आपने देखा होगा हैप्पी वर्ड को कितनी तरीके से, और अनहैप्पी या फैमिली वर्ड को कितनी तरह से राइटर ने बीच बीच में यूज कर लिया. हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे. Okay, so while I explain all these things in this poem, I told you about polyptoton and diacope. I also talked about different poems and एक मोहिनी चटर्जी का नाम भी लिख लीजिए. W.B. Yeats उनसे डबलिन में मिले थे. और दूसरा मैंने आपको पुरोहित स्वामी जी का नाम बताया. ठीक है. मंडूक उपनिषद भी इन्होंने ट्रांसलेट किया था W.B. Yeats के साथ मिलकर के. पोएम्स उन्होंने और भी लिखी हैं इस तरह की, लेकिन अभी बात करते हैं. और ये पोएम जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये किस चीज से रिलेटेड है बताइए? द आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस प्लस वर्ल्ड वॉर प्लस 1819 का जो फ्लू था, पैंडेमिक जो फैला था. सबको पता होगा कि ये हर 100 साल बाद कोई ना कोई पैंडेमिक संसार में आती है. तो सबको अब तो पता चल गया होगा. तो अब जैसे हमारे यहाँ आसपास डेथ्स हो रही हैं, ऐसी डेथ जब वहाँ हुई थी तो द राइटर वाज इन्फ्लुएंस. अच्छा, उनको ऐसा पता था कि आपको पता है कि जो बिफोर क्राइस्ट जब हम लिखते हैं तो उस बात को, ये 20th सेंचुरी स्टार्ट हो चुकी थी, तो उनको ऐसा लगा कि ये जो एपोकलिप्टिक विजन है ना, लगता है कि अब क्राइस्ट पैदा होंगे. जैसे हमारे यहाँ पे भी कल की अवतार का कॉन्सेप्ट है ना. कल की अवतार क्या है कि वो डिस्ट्रक्शन के साथ पैदा होंगे. हालांकि मैंने कहीं पढ़ा था कि कल की अवतार जो होंगे ना, वो इस सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन करने के लिए ही आएंगे. हम लोगों ने इतना सत्यानाश मार दिया है नेचर का एंड ह्यूमन लाइफ का कि अल्टीमेटली कल की अवतार होगा एंड इन दैट अवतार विल डिस्ट्रॉय दिस यूनिवर्स. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन्ड. देखिए, सेरेमनी जो वर्ड है और इनोसेंस जो वर्ड है, ये राइटर के लिए बहुत कीमती है. जब मैं ये वर्ड समझा रहा था, देन आई वाज टॉकिंग अबाउट लेडी ग्रेगरी. लेडी ग्रेगरी, देखिए 2 तरह के लोग होते हैं.
आपने कभी देखा है जो बहुत भले रिच ना भी हो, लेकिन जो किसी को लूटना नहीं चाहते हैं, तो स्ट्रीट स्मार्ट जो लोग नहीं होते हैं, कौन नहीं होते बताइए? जिनके घर में दादी नानी, दादा दादी, मामा, पूरी फैमिली है, आपको अच्छे वैल्यूज दिए जा रहे हैं, आपको चालाकी नहीं आती, बिना किसी बात के आपको किसी से लूटने का मन नहीं कर रहा है, आपको फालतू में झूठ बोलने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो। यू डोंट वांट टू चीट एनीबडी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा डर्ट्स में, अभावों में, दे लैक मैनी थिंग्स इन लाइफ, and because of that I think for their sustenance of their existence they become smart. okay, उनको बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। तो देखिए, मॉडर्निटी ने हमें कहीं ना कहीं स्ट्रीट स्मार्ट बना दिया है। हम जबरदस्ती बिना बात के झूठ बोलते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा था, आपको मैं एकदम से धार्मिक नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपको एक एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन बीइंग ये बता सकता हूं कि मैं अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस लाता हूं एज अ ह्यूमन बीइंग। केवल पढ़ाता नहीं हूं, these writings have a great influence on me। और परवरिश भी मेरी ऐसी हुई है कि जैसे मेरे डैड ने मुझे बचपन में कहा था कि ना, झूठ नहीं बोलते, क्योंकि झूठ बोलने से आपके जो आपके अंदर जो एक पर्सनालिटी का तेज है ना, वो खत्म हो जाता है। तो सत्य बोलो। अब ये कई बार लाइफ में भूल जाते हैं, तो झूठ तो बोलते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जो बड़े होने लगे, अभी जैसे जिस एज में मैं हूं, उसमें अगर मेरे मुंह से कभी झूठ निकल गया, पता है मैं सारे दिन दुखी रहता हूं कि यार ये कैसे हो गया, क्यों निकला जबरदस्ती। जैसे अभी अभी हमारे मोहल्ले में जो चौकीदार है वो नहीं आ रहा रेगुलरली। अभी मैं पढ़ रहा था और वो बेल बजाने को तैयार था, गेट की आवाज से मैं तुरंत भाग के बाहर गया, बिकॉज माई वाइफ वॉज ऑलरेडी डिलीवरिंग हर लेक्चर ऑनलाइन, सो आई थॉट लाइक शी वुड बी डिस्टर्ब्ड। तो मैंने देखा, आप मुझसे बोर मत हो जाना कि अपनी बातें बताने बैठ जाता है। एक टीचर समझाते वक्त अपनी बातें जरूर बताता है, वरना वो समझाएगा कैसे आपको। एनेक्डोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो और जिनको ये पसंद नहीं है वो थोड़ा बर्दाश्त कर लो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैं जब गया तो मेरे मुंह से ये निकल गया, पैसा नहीं है अभी, मत आओ, तुम आते नहीं हो। तो मैं जब अंदर आया ना, तो मुझे इतना दुख हुआ कि मेरे मुंह से ये क्यों निकल गया, पैसा नहीं है। बिकॉज पैसा तो है, पैसा क्यों नहीं है, डेली आई अर्न। तो फिर मैंने देखा कि यार ये क्या बोल गया मैं मुंह से, एंड आई फेल्ट वेरी बैड। तो ये, लेकिन आपने देखा है अभी की जनरेशन में ऐसा हो रहा है, बिना बात के भी हम झूठ बोल रहे हैं, जब जरूरी नहीं है तब भी झूठ बोल रहे हैं। इट मीन्स इनोसेंस लॉस्ट हो जाती है। आप इनोसेंस देखना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों से मिलिए, जैसे मैंने आपसे कुछ कहा, आप उस पर यकीन कर रहे हो, इट मीन्स यू आर वेरी इनोसेंट। इनोसेंस नहीं खोनी है, किसी कीमत पर इनोसेंस नहीं खोनी चाहिए। आपके मन में बच्चे की तरह वो आता ना, एक मिस्टर बीन्स कभी देखा करो, उसकी लिटरेरी वैल्यू है दैट समवेयर ही हैज शोन टू अस दैट इनोसेंस, इन वो चालाकियां करता है, बट दैट आर प्यूराइल चाइल्डिश। ओके, तो मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूं कि ये जो वर्ल्ड वॉर होता है, ये जो मॉडर्निटी है, कैसे राइटर कह रहा है कि ये संसार कैसे बिगड़ गया है, खराब हो गया है, इनोसेंस खत्म हो गई है। अब देखिए, टीचर को एक बच्चा मान रहा है, लेकिन बीच बीच में वो कोई बात पर अपने स्टूडेंट को नच कर रहा है, देख क्या बोल रहा है, देख क्या बोल रहा है। इसका मतलब है कि वो इनोसेंट नहीं, उनको लग रहा है कि हर आदमी आपको बुद्धू बना रहा है इस जीवन के अंदर। सो एवरीबडी इज नॉट मेकिंग बेनिफिट फ्रॉम यू, टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम यू। इट मीन्स आपके अंदर अगर इनोसेंस नहीं है तो आप फालतू के चालाक हो जाओगे, और वो चालाकी आपका कोई फायदा नहीं करने वाली। मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक फायदा कर देगी, बट अल्टीमेटली आपसे अच्छे लोग धीरे धीरे अलग होने लगेंगे। ओके, सो सेरेमनी, अच्छा सेरेमनी पे भी एक लेक्चर मुझे बनता है देना। सेरेमनी जो होती है, अब आपने देखा होगा कि जो कैथोलिक रिलीजन खत्म हुआ और प्रोटेस्टेंटिज्म आया, तो जो रिचुअलिस्टिक चीजें होती हैं वो खत्म हो गई। आपको पता है भारत के लोग बहुत ज्यादा, खास तौर पे जिनके घर में रिचुअल्स होते हैं बहुत ज्यादा, त्योहार पे त्योहार, they tend to commit suicide less, they tend to fall in depression less. This has been researched. तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट चला था विक्टोरियन एज में, that was a rallying cry to go back to ritualistic Catholicism again. मैं कह सकता हूं आपको एज अ टीचर, अपनी मेरी पढ़ाई पर बेस्ड with experience I can tell you that if you are more ritualistic in your life, then you never fall prey to this depression, this monster of depression and all. आपके घर लोग आते हैं जाते हैं, आप सीरियसली चीजों को फॉलो करते हो। कभी पूजा करना, षोडश उपचार पूजा,
अब भगवान को नहला रहे हैं, अब तिलक कर रहे हैं, अब धूप दे रहे हैं, अब उनका आह्वान किया, अब उनको चरणामृत से स्नान कराया, अब उनके ऊपर गुलाल लगाया, अब उनको आरती, उनको फल, उनको भोजन करा रहे हैं। अब सोचिए, फिर उनको उनका उनको विसर्जित कर रहे हैं। सोचो एक बार, वो सब करते वक्त आपके दिमाग का जो टेंशन है वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा। यू फील दैट सम डिवाइन प्रेजेंस इज देयर। तो मैं जो मोनोथिस्टिक रिलीजन है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वर्ड्सवर्थ की वो जो पोएम आपको याद आ जाएगी कि वुड आई बी अ पैगन, वो उस पोएम में बोलते हैं ना, दिस वर्ल्ड इज टू मच विद अस, याद है आपको, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी वेस्ट अवर पावर्स। वो सोनेट समझने के लिए आपको ये लेक्चर समझना ही पड़ेगा, दैट विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन एंड कंसीडरिंग पैगनिज्म अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, दैट यू फील दैट सम पीपल आर विद यू, नेचर इज विद यू। तो ये जो सेरेमनी होती है किसी के घर में, और सेरेमनी किसके घर में होती है? एक आदमी अकेला रह रहा है, मियाँ बीवी मिलकर के रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, चलो, एंड उनके कोई फंक्शन नहीं होता है, तो कहां से सेरेमनी आएगी, कहां से इनोसेंस आएगा? तो जो प्रेयर फॉर माई डॉटर है उसमें भी द राइटर हैज रिटन ऑन लेंथ अबाउट दिस, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेरेमनी एंड लेंथ। क्योंकि लेडी ग्रेगोरी के फार्म हाउस में जब वो जाते थे रहने के लिए कंट्री साइड में, तो ये डबलिन का राइटर, लंदन में रहने वाला राइटर, ही यूज्ड टू फील के लोगों को कोई टेंशन नहीं है, लोग इनोसेंटली आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आपने सड़क चलते किसी आदमी को रोका, वो आपकी बात का जवाब दे रहा है, आपको पूरा ही बिकम्स सो ईगर टू टेल यू द वे। और सड़क पे अगर हम शहर में पूछे तो वो सोचेगा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, गूगल देख लेना, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन इनोसेंट होगा तो वो आपको सोचेगा अरे इसकी तकलीफ है, इसको मदद करनी चाहिए। ओके, सो अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी लिव्स एंड दे गेट टुगेदर bonhomie, the feeling of humanity is there if there is ceremony and innocence। ये मैंने समझाने की कोशिश की है। ओके, सो द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन्ड, मना कर रहा है, डूब गई है। The best lack all conviction while the worst are full of passionate intensity। ये लाइन बहुत फेमस है बच्चों, ये वर्ल्ड फेमस लाइन्स हैं, और ये रशियन रेवोल्यूशन के बारे में राइटर कह रहा है, और ये सेम लाइन उन्होंने रिपीट की थी इस तरह की प्रेयर फॉर माई डॉटर में भी। वो कह रहे हैं कि जो बेस्ट लोग हैं दे लैक ऑफ ऑल कन्विक्शन। जैसे आप देखेंगे आपके चारों तरफ, या चाहे आप ही ले लो, जो लोग बेस्ट है ना, वो उन लोगों से आजकल लोग पढ़ना नहीं चाहते, या जो बातें बनाता है फालतू में, झूठे सपने दिखाता है। जैसे आप देखिए अभी एग्जाम को लेकर किस तरह के फालतू के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं लोग बाग। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जाम होगा, जब हो जाएगा आपको डेट मिल जाएगी, व्हाई आर यू कंजेक्चरिंग अपॉन एंड वेस्टिंग एंड ल्यूरिंग एंड डिस्टर्बिंग, बिकमिंग अ र्यूमर मॉन्गर। अब क्यों, आपको पता है, डू यू हैव सम कनेक्शन? क्या आपको गृह मंत्री ने बताया कि इस दिन एग्जाम होंगे? इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप लोगों को बुद्धू बनाने, है ना? तो आप ऐसे लोग भरे पड़े हैं, डैम कॉन्फिडेंट पीपल फुल ऑफ इंटेंसिटी। कौन है वो? दे आर द पीपल, राइटर कह रहा है वो वर्स्ट पीपल है। एंड मैं फिर से पढ़ता हूं, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, बेस्ट लोगों का तो कोई कहना नहीं मान रहा है, दे लैक कन्विक्शन, एंड द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। और जो वर्स्ट है उनमें आपको खूब कॉन्फिडेंस दिखेगा। Surely some revelation is at hand। लगता है संसार का खात्मा होने के लिए जरूर भगवान प्रकट होने वाले हैं। रेवलेशन का मतलब मैनिफेस्टेशन, भगवान अब आने ही वाले हैं। एट हैंड मतलब नजदीक ही है भगवान अब। Surely the second coming is at hand। लगता है क्राइस्ट का सेकेंड इनकारनेशन होने वाला है। The second coming hardly are those words out। Allegorically the writer says that अभी मेरे मुंह से ये वर्ड मुश्किल से निकला ही था। When a vast image out of spiritus mundi। spiritus mundi का मतलब लिखो the spirit of whole humanity। spirit of humanity, ये जो वर्ड है soul of the universe कहते हैं इसको, ठीक है? ग्रेट मेमोरी भी बोलते हैं। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लिख लो, पूछेंगे एग्जाम में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द होल ह्यूमैनिटी? ओके, स्पिरिटस मुंडी, इट इज अ लैटिन वर्ड। सो स्पिरिटस मुंडी से निकलकर एक वास्ट इमेज आई, ट्रबल्स माई साइट। I could not see that, I was troubled by looking at it। Somewhere in the sands of the desert, दूर कहीं, writer is imagining, clear? एक दूर एक इमेज मुझे चलती हुई नजर आई, a shape with lion body and the head of a man। हो गया ना नरसिंह अवतार, कि एक बॉडी तो है लायन की और मुंह है उनका आदमी का। a gaze blank, ब्लैंक गेज होती है ना जिसमें पिटीलेस होती है, वो मारने वाली। क्लास में एक्टिंग करके दिखाता, अगर मैं क्लास में होता तो। गेज किसे कहते हैं? ऐसे देखना, ब्लैंक,
जो मारने वाला हो उसमें इमोशंस नहीं होंगे ना, तो बिना किसी इमोशन के गेज लिए हुए दैट एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर कम्स, ठीक है, spirit of mankind, yes, complete in that, right? The God has taken, the Lord has taken an incarnation, a gaze blank and pitiless as the sun. अच्छा, बहुत डीप में नहीं जा सकता, लेकिन हल्का सा बता देता हूं। ऐसे कहा जाता है कि जब हमारे प्रलय आएगी, अगेन वेरी क्रिश्चियन एंड इंडियन हिंदू में माइथोलॉजी हैज बीन मिक्स्ड हियर। हमारे यहाँ पे ऐसे कहा गया है कि 100 गुना सूरज चमकेगा। आपको पता है अभी ओजोन लेयर की वजह से 1/8 लाइट ही आ सकती है, बाकी की लाइट तो रिफ्लेक्ट हो जाती है ऊपर ही, और जब ओजोन खत्म हो जाएगी तो पूरी की पूरी लाइट आएगी 100%, और फिर ये सब खत्म हो जाएगा। ऐसा हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है, ओके, इन द स्क्रिप्चर्स। तो राइटर कह रहा है कि पिटीलेस एज द सन, सो समवेयर ही हैज इन माइंड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ apocalypse, doomsday, pralay, is moving its slow thighs while all about it real shadows of the indignant desert birds. चारों तरफ डेजर्ट बर्ड्स कब आते हैं? जब कोई गिद्ध वगैरह जो होते हैं, द बर्ड्स ऑफ प्रे जो होते हैं, जिनको बोलते हैं ना अपन, क्या एक पर्टिकुलर वर्ड है उनके लिए, मेरे दिमाग में इस वक्त नहीं आ रहा है, अभी आ जाए, स्कैवेंजिंग बर्ड्स, ओके। तो लगता है कि उनके चारों तरफ ऐसे उड़ रही हैं, शेडोज हैं ऐसे बर्ड्स की, जो इंसान को खा जाएगा, क्योंकि जो लाशें बिछी होती है तो उनको पक्षी खाते हैं, गिद्ध वगैरह। डार्कनेस ड्रॉप्स अगैन, चारों तरफ डार्कनेस आ गई है, बट नाउ आई नो दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप, 20 सेंचुरीज जो बीत चुकी हैं स्टोनी स्लीप। स्टोनी स्लीप इज अ मेटाफर फॉर विच द राइटर सेज दैट ह्यूमन काइंड हैज डन नथिंग, were vexed to nightmare by a rocking cradle. लगता है मैं सपना ले रहा हूं और ये इंसानियत की जो नींद है वो उड़ी है, उसको लग रहा है कि उस स्लीप से बाहर आ रहा है, और उसके सपने में कौन आ रहा है? ये उसके क्रैडल के अंदर ये इमेज आ रही है। एंड व्हाट रफ बीस्ट, इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट। लगता है अब इसका समय आ गया रफ बीस्ट का, इस क्राइस्ट का। slouches towards Bethlehem to be born. Bethlehem जहाँ पे क्राइस्ट का जन्म हुआ था। And again this image, this particular beast ये मूव कर रहा है Bethlehem की तरफ। तो जो राइटर है उसने बहुत कुछ कहने की कोशिश की है इस पोएम के अंदर। अपोकलिप्टिक विजन दिखाया है, सररियल इमेजेस दिखाई हैं, सररियल हीरोइक रिटर्न ऑफ क्राइस्ट जो है वो तो तब हुआ था जब उन्होंने अपनी जान दी थी, और अब लगता है ये हमारी जान लेने आए हैं। अब तो लगता है कि कल की अवतार हो गया है, नरसिंह अवतार के रूप में। chaos, confusion, pain, flight, all these things the writer is talking about through these, and कंट्रोल नहीं है हमारा इसके ऊपर, क्योंकि जो फाल्कनर और फाल्कन की इमेज राइटर ने दिखाई है, ठीक है। सो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं, और ये पोएम आपको आ सकती है 100%। एक पोएम आती है आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ये पोएम भी पूछ सकते हैं, क्या बड़ी बात है, बिकॉज दे नेवर आस्क्ड दिस। मोस्टली स्टूडेंट प्रिपेयर इन द MCQs like the second coming, the word has been taken from that, but mostly students don't read this poem, okay? So get ready। आज बहुत सारी बातें पढ़ी हम लोगों ने, अब अगले लेक्चर में मैं आपको और भी नई चीजें लेके आऊंगा रिवाइज कराने के लिए। Till then, thank you very much।